Hey guys, welcome back to this amazing training. So it's 7 in the clock and we are all set to start the session. So are you excited for this training? Because today you are going to learn like the very basic thing, that is how to get the first sale. I hope आपने topic already देख लिया होगा that how to crack your first sale. That's the biggest problem with all the affiliates, with all the beginners, कि how we can get our first sale. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मेरे पास तो रिजल्ट नहीं है, मेरे पास कुछ शो करने के लिए अभी मैंने अर्निंग नहीं किया है, आई डोंट हैव मच नॉलेज, आई डोंट हैव दिस दैट एंड एवरीथिंग, but still I need my first sale. So how to crack the first sale, this is going to be the topic of this session, and we have our guest Mr. Mohit Rawat. So he is going to brief you कि कैसे आप अपने फर्स्ट सेल को क्रैक कर सकते हो. एंड आई नो मोहित की ट्रेनिंग इज गोना बी अमेजिंग, बिकॉज मैंने पास्ट एक्सपीरियंस देखा है, मोहित जब भी ट्रेनिंग करवाते हैं तो इट्स वेरी वैल्यूएबल एंड फुल ऑफ नोट्स, नॉलेज. सो मेक श्योर करना कि आप नोट्स बनाओ. ओके, नोट्स बनाओगे तो आपके लिए अच्छा, नहीं बनाओगे तो यार स्ट्रगल करोगे. ठीक है, so it's better to make notes, and yeah, perfect. So we have a lot of people over here. Yeah guys, so are you excited for this training? I just want to see the excitement. कि जितने excited आप होगे उतने जल्दी मैं बुलाने वाला हूँ हमारे guest को. Oh my God. Yeah, we are going to cover everything. Like obviously first sale में आपको lead भी चाहिए, तो lead कैसे generate होती है, each and everything mindset भी थोड़ा बात करेंगे. ठीक है? So we are going to cover each and everything. Yeah, just type very excited. Just type very excited. No voice. Okay, so I think there is one or two guys जिनको मेरी voice नहीं आ रही, तो guys kindly आप rejoin कर लो, because yeah, very excited, lot of messages I'm getting. Perfect. Okay, so जिनको भी voice में issue आ रही है, ठीक है, क्योंकि voice बिल्कुल clear है, यहाँ पे सबको voice clear आ रही है, जो एक दो लोग हैं तो kindly आप rejoin कर लो, या फिर अपना internet issue internet देख लो एक बार, में भी issue कर रहा होगा. ठीक है. Okay, so let me tell something about Mohit. Okay, so he's going to train you today. So Mohit ने इस platform से more than I think 13-14 lakhs के आसपास earn कर लिए हैं. Okay, throughout the affiliate industry से. And मोहित की एक बहुत अच्छी खासियत है, the learning mindset. देखो यार, अगर आप मोहित को बहुत पहले से फॉलो करोगे, आप देखोगे इनिशियली इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया. इफ अगर आप इनका जो मीटर चैंप हुआ था या फिर हॉल ऑफ फेम हुआ था, इफ यू आर गोइंग टू चेक दैट, यू विल अंडरस्टैंड कि कितना स्ट्रगल था इनिशियल डेज में. बट द वन थिंग दैट ही कंटिन्यूस विद इज दैट कि सीखना नहीं छोड़े. Because I have seen him from very beginning. जितनी भी trainings होती थी, he was there in all the training. जितने भी पेड प्रोग्राम्स आते हैं, किसी भी ट्रेनर का पेड प्रोग्राम्स आता है, हम 100 रुपए खर्च करने के पहले भी सोचते हैं यार 100 रुपए क्यों खर्च करें. बट हम ये नहीं समझते कि 100 रुपए जब हम खर्च करते हैं, वो घूम फिर के हमारे पास वो 100 ना जाने कितने हजारों का या फिर लाखों का फायदा देगा. That's a positive thing that I noticed in Mohit, कि जितनी भी trainings होती है, जितने भी paid programs होते हैं, he try to enroll himself in every program and try to get the best out of it. Okay, so you are going to learn from Mohit, our top earner, among the top earner of affiliate lead stock, who has earned more than 14-15 lakh rupees. Perfect, that's all. So guys, please turn on your camera. I just want to see each and everyone. Just turn on your camera fast. Everyone, please turn on your camera and get ready with your notebook. Get ready with your notebook, something like this, जिसका जो भी book है. Okay, diary and pen paper लेके बैठो. Perfect. Yeah, nice. I can see a lot of cute faces. Sas, everyone, please. Sir, light नहीं है मेरे यहाँ. चलो कोई नहीं है, तुम्हारे यहाँ light नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. Perfect. Yeah, यार ठंडी भी दिख रही है मेरे को. एक पर्सन दिख रहा है कंबल के अंदर बैठा हुआ है घुस के. चलो कोई नहीं. Perfect. Yeah. So thank you so much guys for turning your camera, and I believe कि आपने notebook ले लिया होगा, because that's the very basic step, जिससे आप सीखोगे, क्योंकि सब चीज आप अपने माइंड में रिटेन नहीं कर सकते हो. when you are making notes, वो आपके साथ काफी टाइम तक रहेगा, and when you are listening and writing it down, so there's a high possibility that will be written in your mind. Okay, and again अगर आपको कुछ डाउट होता है, so just you have to just go through that notes जो आपने बनाया है. It will hardly take 5-10 minutes and सारी सेशन आपकी रिकॉल हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ वॉचिंग, आप दोबारा सेशन देखोगे 1 घंटे आधा घंटे की जितने की भी हो, तो टाइम नहीं मिलता है दोबारा देखने का, और आलस भी आता है, आप देखोगे भी नहीं. बट इफ यू आर मेकिंग नोट्स, it will hardly take 5-10 minutes to go through the notes, and you will get the total idea of the session of 1 hour. ठीक है, perfect.
Yeah, Mohit, are you there? Guys, no? Give a big round of applause for Mohit. विकास मैं चैट देख सकता हूँ? Yeah, just a minute. I'm just making a co-host. Okay. Yeah, I think now you can see the chat. Yeah. Yes. Sure. Perfect, Mohit. Okay. मुझे चैट स्टिल विजिबल नहीं है. अच्छा हाँ ठीक है विजिबल. ठीक है. Okay. Just a minute, कुछ लोग guys. यहाँ पे Mohit, just a minute. ठीक है. Guys, if you are interacting with Mohit, Mohit अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन कह रहे हैं, कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं, जब आप चैट में जाते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे एडमिन का ऑप्शन रहेगा. आप उसको क्लिक करोगे तो वहां पे आपको को-होस्ट मोहित रावत दिखेगा, तो आप उस पर रिप्लाई करना. ठीक है. Because I'm not gonna be in the session right now. Mohit आपसे interact करेगा and he is gonna talk. So जब भी आप reply करोगे तो make sure you are replying to Mohit only. Okay? Yeah, carry on Mohit. Okay. ठीक है. हाँ मुझे अब विजिबल है चैट. ठीक है guys. So first of all again welcome. Okay. Because see यार अभी आपके पास ऑप्शन था कि यार आप कुछ और भी कर सकते थे इस टाइम पे. ठीक है. मतलब आप नेटफ्लिक्स भी देख सकते थे, कहीं घूमने भी जा सकते थे, बट स्टिल यू आर गिविंग योर एटलीस्ट 1 आवर आप यहाँ पे दे रहे हो. सो आई रियली अप्रिशिएट एंड आई मेक श्योर कि वो 1-1.5 घंटा जितना भी चलेगा हमारा वर्थ इट हो. ओके. सो लेट मी शेयर माय पीपीटी. ठीक है गाइस, जो भी सारे डाउट है वी विल टेक केयर. डोंट वरी. Yeah, I hope my screen is visible right now. Okay. All right, guys. So let me share PPT. Yeah, Mohit, Okay. we can see the screen. 1 second. I think you have opened the last slide. Yeah. Because it is question. Perfect. Now we can see the first slide. All right, guys. Once again, welcome to this training. Your brother Mohit Rawat, and today in this training we are going to talk about obviously how to get your first sale. बट उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा. ये सेशन हो सकता है 1 घंटा चले, 1.25 घंटा चले. ओके. सो अगर आपका कोई और प्लान है, अगर आप इसलिए आए हो कि यार एक आधा घंटा देखते हैं, 45 मिनट देखते हैं, अच्छा लगेगा तो ठीक है, वरना हम निकल लेंगे, तो आप अभी लीव कर सकते हो. बिकॉज हाफ नॉलेज बोलते हैं ना डेंजरस होती है, हाफ नॉलेज जहर के बराबर होती है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सो मेक श्योर अगर आप इसको अटेंड कर रहे हो, अब जब तक ये मीटिंग चलेगी आप इसके एंड तक रहो. सेकेंड चीज, अगर आसपास अभी आप क्या लाइक लेट के सेशन देख रहे हो, या अगर मतलब साथ में कोई और भी है आप ऐसे देख रहे हो, तो उसका फायदा नहीं है. मेक श्योर आप एक अलग जगह बैठे हो जहाँ पे एटलीस्ट आपको 1 घंटे तक, नेक्स्ट 1 घंटे तक कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना हो. दैट इज द सेकेंड थिंग. ओके. सो मेक श्योर आप रेडी होंगे एंड वी विल गोना टॉक अबाउट हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट सेल. मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इट्स इजी बट नॉट सिंपल. ओके. ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल है, बट उतनी आसान भी नहीं है. ओके. हम हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे, जैसे माइंडसेट के ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर, आप कैसे कैसे काम करना होता है, बहुत बेसिक चीज. ओके. हम सब चीज कवर करेंगे अगले 1 घंटे में. ओके. बट उससे पहले मैं आपको लेट मी टेल यू ट्रुथ, एक छोटा सा ट्रुथ बताना चाहूंगा. आपने जिस भी पर्सन के संग स्टार्ट करा, ओके, आपने जिसके साथ भी इस बिजनेस को स्टार्ट करा, होता क्या है ना, हमें देखो सोशल मीडिया में क्या दिखता है कि गाइस आज हम घूमने गए थे बट फिर भी हमने इतनी अर्निंग कर ली, आज मैं कुछ काम नहीं कर बट फिर भी हमने अर्निंग कर ली. डू यू रियली थिंक यार पैसा कमाना, कि यार आज मैंने कुछ भी काम नहीं करा बट फिर भी अर्निंग कर ली? डोंट बिलीव इन इट. ओके. ओके. बिकॉज देखो सोशल मीडिया की एक बैड साइड ये है कि हमें ना पीछे का वो हमें सिर्फ अच्छी चीजें दिखती है और दिखाई जाती है. जो उसके पीछे की मेहनत होती है ना, बहुत कम लोगों को पता होता है. वो उन्हीं लोगों को पता होता है जो वहाँ पे या तो क्रिएटर है या वहाँ पे कुछ लाइक वहाँ पे काम कर रहे हैं. ओके. एज अ ऑडियंस जो लोग देखते हैं ना, उन्हें रियलिटी नहीं पता होती. अपने बिजनेस से रिलेट करूँ तो वो ये कि जैसे आपको बहुत सारे लोग के आप स्टेटस देखते होंगे कि आज हम यहाँ पे आए, कुछ भी काम नहीं कर रहा, या 1 घंटा काम करा, इतनी 10,000 12,000 रुपए कमा लिए. प्लीज, वो करते हैं बट स्टार्टिंग में आप नहीं कर सकते. स्टार्टिंग में मैंने भी नहीं करा. ओके. सो दैट इज द थिंग आपको समझनी पड़ेगी. ओके. आपको स्टार्टिंग में वो टाइम भी आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वो टाइम भी आएगा जब आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे होंगे बट रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहे होंगे. बट आपको अभी मतलब उस टाइम को लाने के लिए काम करना होगा. ओके. स्टार्टिंग में अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना बताऊं,
इवन आज भी मैं बहुत काम करता हूँ, सिंपल सुबह से लेकर शाम तक मैं बहुत काम करता हूँ, सिंपल नॉट ओनली इन लीड्स आर्क बट डेफिनेटली स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करता था, अभी भी बहुत मेहनत करता हूँ। दैट इज द थिंग, आई होप जो आपको समझ में आई होगी। ओके, व्हाई डू यू थिंक, यहाँ पे चैट अभी ओपन ही है, हाँ चैट ओपन है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा पहले अपनी राय देने से पहले कि आपको क्यों लगता है कि अभी तक आपको फर्स्ट सेल नहीं आई है? व्हाई डू यू थिंक सो कि आपको अभी तक आपकी फर्स्ट सेल नहीं आई है? मुझे आप चैट में रिप्लाई करो। कंसिस्टेंसी हो सकता है, या आपको खुद लगता है कि यार मैंने कोर्स तो ले लिया बट मैंने कुछ इंप्लीमेंट नहीं करा, एग्जीक्यूशन में दिक्कत हो सकती है, वीडियो मेकिंग में, कंटेंट क्रिएशन में। आपको अपने हिसाब से कहाँ पे लगता है कि भाई मुझे इस कारण अभी तक फर्स्ट सेल नहीं आई है? एवरीवन, यहाँ पे अगर 400 450 लोग हैं, आई वांट कि हर एक बंदा उठ के अपने कीबोर्ड का यूज करे। ओके ठीक है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। ओके, प्रूफ मांगते हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे, डोंट वरी। ओके, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, नहीं यार, अगर आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा बाहर जाके देखोगे यार, आउट ऑफ इंडिया लोग मतलब लाखों लाखों रुपए के प्रोडक्ट यूं बेच देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीपल डोंट ट्रस्ट। ओके, लीड से अच्छे से बात नहीं कर पाते। ओके, भाई लोग पैकेज को बड़ा मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस आए, लीड्स नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी, ये दो बहुत कॉमन चीजें आई। ओके, इसके ऊपर हम डिटेल में आगे बात कर रहे होंगे। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जिन भी लोगों ने अभी बिजनेस को स्टार्ट करा है, या जो भी लोग फ्रेशर्स है अभी बिजनेस में, फ्रेशर में किनको बोलता हूँ, दो तरीके के लोगों को। पहला, अब जिनकी अभी फर्स्ट सेल नहीं आई है, बिकॉज उन्हीं लोगों के लिए सेशन है स्पेशली। एंड सेकंड, जिनको अभी एटलीस्ट एक मंथ इस बिजनेस में हुआ है, वो भी एक तरीके से फ्रेशर है। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंटर लिखे, एक बार हम इन सबको कवर करते हैं। पहला, आपको अपनी सारी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करना। आई नो बहुत बेसिक है, आई नो आपको बहुत लोग बता के जा चुके हैं, बट दैट इज द थिंग। ओके, यहाँ पे कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है जो यार बता के फर्स्ट से लाई जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लिखा कि कंसिस्टेंसी नहीं है, या फिर ट्रेनिंग अभी देखी नहीं, कोर्स को लेके रख दिया है। ओके, मैंने 3 से 4 बार कोर्स को कंप्लीट करा था स्टार्टिंग में। ओके, बट मैं आज के टाइम पे देखता हूँ लोग एक बार भी नहीं कर पाते, एंड देर एक्सपेक्टिंग कि हम अर्निंग करें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, जब तक आप इसको खाना नहीं दोगे, नथिंग विल गोना हैपन। सो सबसे पहला पॉइंटर यही है, कंप्लीट योर ऑल द ट्रेनिंग्स फर्स्ट। ओके, गिव एटलीस्ट 3 आवर्स डेली। स्टार्टिंग में मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। ओके, मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर आपने इसे ऐसा पार्ट टाइम पे स्टार्ट कर, अपनी जॉब के संग या अपनी जो भी काम एग्जिस्टिंग आप करते हो उसके साथ 3 घंटे तो देना ही। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 घंटा, आधा घंटा या 3 घंटे से कम टाइम देकर मैं अर्निंग करने लग जाऊंगा, सॉरी टू से, बट आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। ओके, अगर आप उसमें टाइम ही देने के लिए रेडी नहीं हो, कुछ नहीं होने वाला। तो एटलीस्ट आपको 3 घंटे स्टार्टिंग में देने ही देने हैं। ओके, गलतियां करोगे सीखोगे, फेल होगे सीखोगे। ओके, बट स्टार्टिंग में 3 घंटे आपका बनता है। थर्ड चीज, स्टार्ट पुटिंग कंटेंट ऑन योर सोशल मीडिया। अपने सोशल मीडिया में, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग ऑफलाइन बिजनेस, वी आर डूइंग ऑनलाइन बिजनेस। हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लोग हमारे पास ऑनलाइन आते हैं। आप ऑनलाइन आए हो, जिसके संग भी आपने स्टार्ट करा, आप अभी यहाँ पे कनेक्टेड हो, ऑनलाइन हो। ओके, बट आपके पास ऑनलाइन अगर आप कंटेंट ही नहीं डाल रहे हो, ओके, अपने बिजनेस को अगर आप ज्यादा लोगों तक रीच आउट लेकर, अपने बिजनेस को लेकर आप ज्यादा लोगों तक रीच आउट ही नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। आपको लीड्स की प्रॉब्लम इसलिए होती है बिकॉज आप कंटेंट नहीं डालते। और कंटेंट डालने से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि यार आप एक बंदे का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके दूसरे का अपनी प्रोफाइल में डालो, या इंस्टाग्राम का कंटेंट इंस्टाग्राम पे आप डालो। कंटेंट डालने का मतलब वो भी नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स की फोटो डाल के रखते हैं, संदीप महेश्वरी, इसकी उसकी। यार वो लोग तो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है। आपको लोग क्यों फॉलो करें, आपको लोग क्यों पहचाने? ओके, आपका कंटेंट अगर बहुत बेकार भी है ना, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, बट वो आपका खुद का है, दैट इज द मेन थिंग। तो कंटेंट डालना स्टार्ट करो। ओके, मैं अपने लाइक बहुत सारे लोग जो मुझे भी कई बार अप्रोच करते हैं, मैं देखता हूँ कि यार उनकी प्रोफाइल फर्स्ट सेल के लिए करते हैं अप्रोच कई बार कि अभी तो फर्स्ट सेल नहीं है, और मैं उनकी जब प्रोफाइल उठा के देखता हूँ ना, बोलते हैं कि 2 महीने हो गए बट उनकी प्रोफाइल में 10 पोस्ट भी नहीं होती। ओके, और ये हो सकता है ये कहानी आप में से भी बहुत ज्यादा लोगों की हो। ओके, तो अगर आप ये सब काम करें बिना एक्सपेक्ट करे फर्स्ट सेल आएगी, नहीं आएगी। ओके, फोर्थ चीज, स्टार्ट टॉकिंग टू एवरी लीड ऑन कॉल। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, ऑब्वियसली मेरे लिए या जिस पर्सन एटलीस्ट
एक अच्छा अमाउंट ऑफ अर्निंग या एक डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग कर ली है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है फोर्थ पॉइंट में हम है कि हम हर एक पर्सन से कॉल में कनेक्ट कर पाए। बट स्टार्टिंग में आपको हर एक पर्सन से कॉल में कनेक्ट करना है। क्यों? अब मैं नहीं कह रहा वो हर एक बंदा कन्वर्ट होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि यार हर एक बंदा आपसे आके परचेस करेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो पर्सन लेट से आपसे कॉल में आपने उसे कन्वर्ट नहीं भी किया, बट अगर आपने उसे अच्छे से समझाया ना, तो आप बहुत ज्यादा सीख रहे हो उस प्रोसेस में कि कैसे ऑब्जेक्शन आंसर करे जाते हैं, कैसी टोनैलिटी रखी जाती है। कोई पर्सन जब आपको इमीडिएटली ऑब्जेक्शन देता है तो उसको कैसे इमीडिएटली आंसर करना है, बहुत सारी चीजें आपको वो स्टार्टिंग का फेज सिखाता है। ओके, जैसे लेट से आप फर्स्ट पहले प्रोस्पेक्ट से बात करते हो ओवर द कॉल, आप उसको सारी चीजें समझाते हो, आप बहुत बेकार होंगे प्रोस्पेक्टिंग में या बिजनेस समझाने में, लेकिन जब आप वही बात 10वें पर्सन से कर रहे होंगे ना, तो आपका जो फर्क होगा पहले पर्सन से बात करने में और 10वें पर्सन से बात करने में, जमीन आसमान का फर्क होगा। क्यों? क्योंकि 10 लोगों से बात करते करते आप बहुत ज्यादा नर्चर हो चुके होंगे। ओके, तो हर एक लीड से स्टार्टिंग में जब तक आपका फर्स्ट सेल नहीं आ जाता, कॉल में कनेक्ट करो, क्लोज करने के लिए नहीं। ओके, क्लोज तो हो ही जाएंगे वो अगर आप समझाओगे अच्छे से, इसलिए कि मैं यहाँ से सीख रहा हूँ, मैं अपनी कम्युनिकेशन को यहाँ से इंप्रूव कर रहा हूँ। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डो नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आई नो बहुत बार सुना है, बट स्टार्टिंग में आपको अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना कि यार, बिकॉज मैंने बताया ना सोशल मीडिया में अच्छा 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 तो दिखता है, बट क्या कोई आपको ये दिखाता है कि यार दो दिन हो गए या 4 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, सेल नहीं आ रही। ओके, मेरी आज सेल नहीं आई, मैं नहीं दिखाऊंगा। मेरी कल सेल आई थी, मैंने दिखाई। ओके, ओके, वो सोशल मीडिया के डिसएडवांटेज है कि बुरी चीज नहीं दिखाते। ओके, ठीक है, आपको सिर्फ अच्छी चीज दिखती है, तो उनको देख के ना अपना कंपेयर मत करो। सिंपल, दैट इज द 5 पॉइंट्स आई थिंक आप लोगों ने नोट करे होंगे, स्क्रीनशॉट लिए होंगे, जो आपको ध्यान रखने, स्पेशली अपने अगर आप फ्रेशर हो, अपने इनिशियल फेज में हो। गॉट इट? दैट इज द थिंग। अगला क्वेश्चन यार, बहुत सारे लोग आप में से हो सकता है डर लगता हो वीडियो बनाने में, तो आप में से किन किन लोगों को डर लगता है वीडियो बनाने में? जस्ट टाइप यस और नो, वाई और एन। ओके, किन किन लोगों को डर लगता है वीडियो बनाते हुए? ओके, फिर मैं आपको ना वीडियो कैसे आप उसको हटा सकते हो, यस यस ओके ठीक है, अगर लगता है यस, नहीं लगता नो, सिंपल बट फटाफट। मुझे भी ओके ओके ओके, मतलब 85-90% लोगों को लगता है। ओके, अब यहाँ पे 2-3 चीजें हो सकती है जो मेरे को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लगती है। पहला, आप परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो। ओके, आप ये सोच रहे हो कि जब इस पर्सन की तरह मैं एडिटिंग करने लग जाऊंगा, या जब इस पर्सन की तरह मेरे पास बैकग्राउंड आ जाएगा, उस दिन मैं अपनी फर्स्ट वीडियो डालूंगा। बट लेट मी टेल यू वंस अगेन कि वो टाइम नहीं आएगा अगर आप अपनी फर्स्ट वीडियो नहीं डालोगे। ओके, स्टार्टिंग में किसी के पास रिसोर्सेज नहीं होती, स्टार्टिंग में आपको रिसोर्सफुल होना होता है। मतलब जो रिसोर्सेज, जो फोन आपके पास है, जो बैकग्राउंड आपके पास है ना, उसी से आपको स्टार्टिंग करनी होती है। अगर आप मेरी, विकास भाई के लीड जैक में जो अच्छा कर रहा है, किसी भी पर्सन का स्टोरी उठा के देखो या प्रोफाइल उठा के देखोगे, स्टार्टिंग का कंटेंट आपको बहुत बेकार लगेगा। ओके, कि क्या बैकग्राउंड है यार, इसने कैसे इतने कमा लिए, बट वो लगा रहा लगा रहा लगा रहा, तो आज उसके पास अच्छा रिसोर्सेज है और उससे वो एक अच्छा कंटेंट बना पाता है। तो फर्स्ट पॉइंटर यही, अगर आपको डर लगता है कि परफेक्शन मत ढूंढो। ओके, आपके कोई हजारों या लाखों में फॉलोअर्स नहीं है जो आपको जज करने बैठे हैं आपके सोशल मीडिया में कि यार जब ये पर्सन वीडियो डालेगा तो मैं इसको लाइक या डिसलाइक करूंगा। नहीं है आपके इतने फॉलोअर्स। ओके, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज यार, जो आपका इम्प्रूवमेंट होता है या जो परफेक्ट आप ढूंढते हो ना कि यार मैं एक टाइम पे परफेक्ट हो जाऊंगा, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप होते हो। सिंपल। एंड थर्ड पॉइंटर जो मुझे लगता है कि यार क्यों लोग डरते हैं, बिकॉज सोचते हैं कि यार ये कहीं मजाक ना उड़ाए, स्पेशली ऑनलाइन नहीं, स्पेशली ऑफलाइन, कि यार अगर मैं इसके सामने वीडियो बनाऊंगा ना तो मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओके भाई, अगर आप अभी वीडियो बनाते हो, ओके, यू डोंट इवन बिलीव यार, लोगों को ना, मतलब मैंने कहीं सुना था ये, ओके, एंड ये वो भी है, सच सच भी है कि लोगों को ना डेथ के बाद जो सबसे बड़ा डर होता है ना, वो पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन या वीडियो बनाने का ही होता है, लोगों के सामने बात करने का होता है। ओके, तो अगर आप इस चीज को कर पाते हो ना भाई, आप ऑलरेडी भीड़ से अलग हो जाओगे। समझे? तो ये 2-3 चीजें हो सकती है जो आपको हेल्प करेगी आपके, देखो वीडियो अब कैसे आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस में, मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी है वीडियोस ने। और आज के टाइम पे अगर आप किसी भी टॉप रनर को उठा के देख लो, कहीं पे भी किसी भी जगह, ओके, किसी भी इन्फ्लुएंसर को उठा के देख लो, वीडियो के बिना भाई, मतलब वीडियो आपको हर पर्सन, क्योंकि वीडियो से ना ट्रस्ट बनता है।
जब पर्सन आपको देखता है ना सामने से कि यार ये बात कर रहा है ये हमारी तरह, तो पर्सन कनेक्ट कर पाता है, वहां से ट्रस्ट बिल्डअप होता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने लिखा था ना, लोग ट्रस्ट नहीं करते। लोग कैसे ट्रस्ट करें? लोग आपको क्यों 10,000 रुपए, क्यों आपको 4,000 रुपए दे? आप वो तो ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे ना। ओके, तो वो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आपको वीडियोस बनानी होती है। ओके, अब वीडियोस बनाने के लिए आप कंटेंट कैसे ला सकते हो उसके ऊपर भी हम आगे बात कर रहे होंगे, बट आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, नेक्स्ट चीज, अब स्टार्टिंग में लाइक कुछ माइंडसेट मैं आपको दे देता हूँ। जो माइंडसेट इज एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? डोंट एक्सपेक्ट लाइफ और एनीथिंग इन लाइफ टू बी इजी। ओके, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि जब मैं 1 लाख रुपए कमा लूंगा, या जब मैं 50,000 रुपए कमा लूंगा, जब मैं फर्स्ट सेल ला दूंगा, उसके बाद तो मैं सेल की बरसात ला दूंगा, बिजनेस से रिलेटेड बता रहा हूँ एग्जाम्पल, या फिर जब मैं ये काम कर लूंगा उसके बाद तो सब कुछ ईजी हो जाएगा, सॉरी बट वो नहीं होने वाला। ओके, आज कोई भी बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, इवन अगर हम अपने बिजनेस में बताओ, चाहे मैं हो गया चाहे बाकी लोग हुए, भाई आज हमें भी दिक्कत आती है बहुत सारी जगह में, बहुत सारी जगह में हमें भी दिक्कत आती है। ओके, कि जहाँ पे हमें लगता है कि यार ये नहीं हो पाएगा। ओके, तो लाइफ आसान नहीं है। ओके, अप्स डाउन अप डाउन अप डाउन आएगा। ओके, इफ यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड फ्रस्ट्रेटेड ओवरवेल्म्ड एवरी डे, अगर आप हर दिन कंफ्यूज्ड फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं कर रहे, यू आर नॉट ग्रोइंग। ओके, एक बंदा जो दिन भर 4 घंटे, मतलब पूरे दिन में 4 घंटे अपना नेटफ्लिक्स से आगे टाइम वेस्ट करता है या वेब सीरीज में अपना टाइम देता है, वो बंदा कभी भी लाइफ में कंफ्यूज फ्रस्ट्रेटेड फील ही नहीं करेगा यार, वो तो अपना लाइफ मस्त जी रहा है। ओके, फ्रस्ट्रेटेड कौन फील करेगा? जो लाइफ में कुछ कर रहा है यार, कुछ बड़ा कर रहा है या फिर कुछ भीड़ से हटके कर रहा है, समझे? वही तो फ्रस्ट्रेटेड ओवरवेलमिंग फील करेगा ना। और अगर आप ये सब फील कर रहे हो, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो सकता है कि आज आप अपनी ग्रोथ सिर्फ पैसे से मेजर करते हो। ओके, मेरे को मेरे टीममेट का मैसेज आया था कुछ दिन पहले कि भाई हर दिन मैं खुद को मोटिवेट कैसे रखूं। कि मैंने सिंपली उसे रिप्लाई करा, भाई हर दिन मैं अर्निंग नहीं करता, हर दिन मैं पैसा नहीं कमाता, लेकिन आप उससे अपनी अपनी ग्रोथ को मत नापो। अपनी ग्रोथ को किससे नापो? क्या हर दिन मैं कुछ नया सीख रहा हूँ? क्या हर दिन मैं कुछ पहले से बेहतर बन रहा हूँ? इफ द आंसर इज यस, यू आर ग्रोइंग ब्रदर। सिंपल, ये मैंने रिप्लाई करा। इन थर्ड पॉइंटर है, अप्स एंड डाउन्स विल कम एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ। ओके, स्टॉक मार्केट होता है ना, कभी नीचे कभी ऊपर कभी बहुत नीचे, वही लाइफ के संग है। कभी अच्छा फेज आएगा, कभी बुरा फेज आएगा, कभी अच्छा फेज आएगा, कभी बुरा फेज आएगा। सिंपल। ओके, दैट इज द माइंडसेट यू शुड हैव कि यार लेकिन मैं हर फेज को ओवरकम कर लूंगा। ओके, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होता है, इस तरीके के ट्रेनिंग लेकर, समझे? अब मैंने यहाँ पे एक फेसबुक का एग्जांपल लिखा। फेसबुक को हम सब जानते हैं। अब जैसे मैं भी फेसबुक के बारे में काफी पढ़ रहा था। ओके, तो मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले ये आर्टिकल पढ़ा था या कहीं पे सुना था मैंने कि फेसबुक को लास्ट 8 महीने में इतना, जितना मतलब अंबानी और अदानी की मिला के नेटवर्थ कितनी है, अराउंड 250 to 60 बिलियन डॉलर, इतना फेसबुक को लास्ट 8 महीने में लॉस हुआ है। ओके, फेसबुक तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसका भी डाउन फेज चल रहा है बहुत। ओके, समझाना इस एग्जांपल से फिर इतना चाह रहा हूँ कि भाई जो अप डाउन वाला फेस है, वो चाहे आप लाइफ में किसी भी लेवल में पहुंच जाओ, आएगा ही आएगा। ओके, कभी लाइफ में अच्छा 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 नहीं होता, कभी लाइफ में बुरा 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 नहीं जाता। दैट इज द माइंडसेट यू शुड हैव। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। अब सेल्स आती कैसे? जैसे ये जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जब बहुत लोगों से, स्पेशली जब मैंने ये वेबिनार अपनी टीम के लिए लिया था, तो मैंने उन्हें माइक ओपन करके बताया और बेरी में मुझे कोई कोई आंसर नहीं कर पाया कि सेल आती कैसे, स्पेशली अपने बिजनेस में। ओके, उनके पता आंसर क्या था, और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों के आंसर है कि भाई आता है बंदा, लिंक मांगता है, परचेस करता है, हो जाता है। ओके, बंदा आता है सोशल मीडिया से, बट वो एग्जैक्ट प्रोसेस तो नहीं जानते ना। ओके, उसके बारे में ही हम अगली स्लाइड में बात करेंगे, जो कि है, अब यहाँ पे आप पूरा समझ रहे होंगे, लेट अंडरस्टैंड द सेल्स प्रोसेस। ये पूरे 5 स्टेप्स का सेल्स प्रोसेस होता है। ओके, जो अब इसको डेफिनेटली अगर थोड़ा सा हम ब्रेक और करेंगे तो और भी ज्यादा स्टेप्स में हो जाएगा, बट जो नॉर्मली ये स्टेप्स होते हैं, ये 5 स्टेप्स होते हैं। ओके, पहला आपको इंक्वायरी आता है। सेल्स ये मत समझो कि यार किसी दिन भगवान जादू या फिर आपने भगवान जादू करेंगे और आपके पास सेल्स आ जाएगी। सेल्स ये मत समझो कि यार मैंने स्टार्ट कर लिया तो भाई अब मुझे बैठना है, 2-4 वीडियोस देखनी और सेल्स आ जाएगी, नहीं। सेल्स का एक प्रोसेस है। ओके, सेल्स लाने का एक प्रोसेस होता है, समझे? जो कि है, पहले आपको इंक्वायरी आती है। ओके, डिटेल में हम बात करेंगे आगे। पहले आपको इंक्वायरी आती है। इंक्वायरी का सिंपल सा अगर मतलब समझाऊं, जब आपको आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, लिंक्डइन में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई बंदा मैसेज करता है, ओके, उसको बोलते हैं इंक्वायरी। जब वो बंदा या कोई बंदी
आपके उसमें आती है, व्हाट्सएप में आती है, तो वो आपका इंक्वायरी से लीड बनता है। जब आप उसको अपना बिजनेस वगैरह अच्छे से समझा देते हो, अपना प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाकर या बिजनेस को कॉल में बताकर, तो वो आपका प्रोस्पेक्ट बनता है। एंड जो चौथा स्टेप है, सेकंड लास्ट स्टेप हमारा होता है, वो होता है फॉलोअप। ओके, फॉलोअप कैसे कैसे कर सकते हैं पूरा डिटेल में आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो पांचवा स्टेप होता है वो होता है सेल्स। ओके, तो अगर आगे से, अगर स्पेशली अपने बिजनेस में आपसे कोई भी पूछे, ओके, अगर आपको अपनी टीम को भी सिखाना हो या अपने लोगों को भी सिखाना हो ना, तो ये स्टेप्स उन्हें बताना। ओके, समझे? बिकॉज ये 5 स्टेप्स को फॉलो करे बिना आप सेल्स ला ही नहीं सकते। ओके, मान लो आपके पास बहुत सारे इंक्वायरीज आ रही है आपकी, बट वो आपके व्हाट्सएप में नहीं आ रही, वो आपका बिजनेस समझ ही नहीं रहे, सेल्स आएगी? नो। ओके, बिकॉज इंक्वायरी तो बहुत सारी आ रही है, लेकिन वो बिजनेस समझ ही नहीं रही है, समझ ही नहीं रहे हैं, तो सेल्स नहीं आएगी। तो दैट इज द 5 स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो टू गेट योर फर्स्ट सेल। और कोई भी सेल आपको लाने के लिए 5 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। गॉट इट? यस। अब हम ना इंक्वायरी के ऊपर बात करते हैं डिटेल में। ओके, इंक्वायरी अब कैसे आती है, अब हर एक स्टेप्स के ऊपर, इस स्टेप के ऊपर हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। इंक्वायरी कैसे आती है? व्हेन यू विल पुट कंटेंट ऑन योर सोशल मीडिया। ओके, ऑब्वियसली अगेन हम कोई ऑफलाइन बिजनेस या कोई दुकान खोल के नहीं बैठे, हम सोशल मीडिया में या ऑनलाइन बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें इंक्वायरी लाने के लिए कि लोग हमें कांटेक्ट करें। लोगों का क्वेश्चन था ना कि यार लीड नहीं आती, लीड इसीलिए नहीं आती बिकॉज भाई आपकी सोशल मीडिया में 2 महीने के अंदर 10 पोस्ट डली होती है, लोग इसीलिए आपको कांटेक्ट नहीं करते। ओके, आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालना पड़ेगा। व्हेन यू विल पुट कंटेंट ऑन योर सोशल मीडिया, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पुट वैल्यूएबल प्लस प्रमोशनल कंटेंट। इन दोनों का मिक्स होना चाहिए। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आपको अपना बताऊं, मैं हफ्ते में लेट से 5 से 6 रील डालता हूँ। ठीक है, इस मैं 7 दिन होते हैं, 5 या 6 रील में डालता हूँ, 5 या 6 दिन में कंटेंट डालता हूँ। ओके, संडे को नहीं डालता लेट से। तो उसमें से 3 पोस्ट जो मेरी होगी या 3 जो कंटेंट मेरे होंगे वो होंगे वैल्यूएबल। ओके, जो बाकी के 2 कंटेंट होंगे वो होंगे प्रमोशनल। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ प्रमोशनल, वही बार बार येलो डैशबोर्ड येलो डैशबोर्ड येलो डैशबोर्ड। भाई लोगों को वैल्यू भी तो देना बनता है ना। ठीक है, ठीक है, आज आप ग्रोथ कर जाओगे सिर्फ प्रमोशनल 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 कंटेंट डाल के, बट अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो इन द कंटेंट क्रिएशन फील्ड ना, आपको वैल्यूएबल कंटेंट डालना ही पड़ेगा। ओके, अभी तो ठीक है, लोग आपको क्यों फॉलो करते हैं? बिकॉज आप अर्निंग करते हो। बट बिजनेस के बाद आपको लोग क्यों फॉलो करेंगे? जब आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करोगे। ओके, तो आपको कोई भी आप मिक्स फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं 5 में से 3 मेरी वैल्यूएबल रील होती है, 2 मेरा प्रमोशनल कंटेंट होता है। ओके, तो आपको भी इस तरीके से ही आपका लेके चलना है। तब लोग आपको इंक्वायरी, तब लोग आपको मैसेज करेंगे, तब आपके पास इंक्वायरी आएगी। थर्ड स्टेप, थर्ड लाइक जो हमारा पॉइंट है, यू हैव टू गिव पीपल अ रीजन व्हाई दे शुड मैसेज यू। ऑब्वियसली आपको एक रीजन देना पड़ेगा। अब आपकी प्रोफाइल एक अट्रैक्टिव होनी चाहिए। वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हमने ऑलरेडी बात करी, तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा कि अच्छा बायो लिखो, अच्छा कंटेंट लिखो, या फिर अच्छे पोस्ट वगैरह डालो, अच्छी रील्स डालो। वो ऑब्वियसली ठीक है, वो तो करना ही है। तब लोग आपको मैसेज करते हैं। पुट स्टेटस एंड स्टोरीज ऑन योर सोशल मीडिया, फोर्थ पॉइंट। ओके, आपको अपने रेगुलर बेसिस में, आप शायद ही कभी मेरे को देखोगे कि मेरे आपको इंस्टाग्राम पे या मेरे सोशल मीडिया में आपको एक भी मेरी स्टोरी नहीं दिखी, शायद ही आप देखोगे। ओके, बिकॉज अगर आपके सोशल स्टोरीज में लेट्स से मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में 50 व्यूज भी जाते, स्टार्टिंग में या 20 व्यूज भी जाते या 50 व्यूज जाते हैं, तो भाई आप 50 लोगों के सामने अगर बार बार जाओगे ना, तो वहीं से एक दिन एक बंदा आपको मैसेज करके बोल देगा कि भाई करते क्या हो। ओके, सिंपल। स्टेटस स्टोरीज आपको रेगुलर बेसिस में लगाने पड़ते हैं, बट हम ना इन्हीं बेसिक चीजों को खा जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि कोई हमें एक ब्रह्मास्त्र देगा और वो हम फॉलो करके रिजल्ट लाएंगे, अपना सेल लाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एंड लास्ट पॉइंटर जो स्टार्टिंग में मतलब सच्ची में ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर सकता है, वो है स्टार्ट ग्रुप प्रमोशन। ओके, अगर आप फेसबुक में ग्रुप प्रमोशन करते हो ना भाई, आपको भर भर के लीड आ जाती है। आई नो थोड़ी जंक लीड होती है, आई नो कि थोड़े डम से लोग भी आते हैं, लेकिन उनमें से ही अगर आपके पास 100 लोग या 50 लोग आ रहे हैं ना, 2-4 ग्रुप में प्रमोशन करके, उनमें से ही आप 1-2 सेल इजीली निकाल सकते हो, अगर आपका कम्युनिकेशन वगैरह अच्छा है। ओके, अच्छे से मतलब मेरा ये नहीं है कि यार आपका पहले से अच्छा होना चाहिए, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा और उसी में टाइम लगता है। ओके, अगर आप इन 5 चीजों को फॉलो करते हो, कंटेंट डालते हो, आपका वैल्यूएबल कंटेंट, प्रमोशनल कंटेंट, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज है, लोग आपको मैसेज करेंगे, इंक्वायरीज आपके पास आएगी ही आएगी। सेकंड स्टेप में चलते हैं, लीड्स। अब लीड्स में भी वही है कि यार जब आप लीड्स का मतलब क्या मैंने बताया कि जब आपको लोग इंक्वायरी से व्हाट्सएप, जब आपका इंस्टाग्राम से आपके व्हाट्सएप में लोग आते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीड्स का।
ओके, योर प्रोफाइल शुड बी ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार लोग मेरे इंस्टाग्राम पे तो मुझे मैसेज कर देते बट वो मेरे व्हाट्सएप में नहीं आते, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट यू। वो आपको इतना ट्रस्ट नहीं करते कि वो आपके संग अपना पर्सनल नंबर या पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना चाहते। ओके, कई बार मेरे संग भी होता है आज के टाइम पे कि 10 में से कई बार होता है, 10 में से मतलब 20 में से कई बार 30 में से एक बंदा मुझे भी बोल देता है कि भाई आप यही बता दो। ऑल तो मैंने अभी बहुत अच्छे से प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर रखी है, लेकिन आपका स्टार्टिंग में यही दिक्कत होती है कि अगर लोग आपको व्हाट्सएप में मैसेज नहीं कर रहे तो बिकॉज आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज ही नहीं कर रखा है। ओके, हमारे बिजनेस में हमारी जो प्रोफाइल है वो एक शॉप की तरह काम करती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक मिठाई की दुकान खोल ली अपने आसपास, अपने गांव में, अपने कहीं पे भी, अपने शहर में, लेकिन उसकी आपने अच्छे से डेकोरेशन नहीं करी, आपने बोर्ड नहीं लगाया, तो लोग आएंगे नहीं। आप देखते होंगे कि यार जब भी कोई त्योहार आता है, दिवाली, धनतेरस वगैरह आता है ना, तो आपके आसपास की जो नेता लोग होते हैं ना वो अपने पोस्टर लगा लेते हैं, बिकॉज वहां से उनको आई बॉल्स मिलते हैं। ओके, वहां से उनको रीच मिलती है, ज्यादा लोग उनका नाम को जान पाते हैं, तभी वो अपने इतने पोस्टर वगैरह लगा देते हैं, स्पेशली जब फेस्टिवल का टाइम आता है। ओके, बट हमें वो सब नहीं करना, हमें ऑनलाइन करना है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज डू नॉट शेयर बिजनेस डिटेल ऑन सोशल मीडिया। जो सेकंड पॉइंटर है कि यार बिजनेस की डिटेल, मैं बहुत बार बताता हूँ ये कि बिजनेस की डिटेल कभी भी सोशल मीडिया में मत डालूं। रीजन बीइंग कि अगर आपने उसको सोशल मीडिया में मत दो, मेरा का मतलब है कि उसमें मत डालो, चैट वगैरह मत सेंड करो, जैसे अपना प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह। कि रीजन बीइंग बिकॉज अगर आप उन पर्सन को, अगर आपने बिजनेस वहां पे भेज दिया या बिजनेस प्रेजेंटेशन वीडियो वहां पे भेज दी, तो वो व्हाट्सएप में नहीं आएंगे, और अगर व्हाट्सएप में नहीं आएंगे ना तो आप उनका फॉलोअप नहीं ले पाओगे अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह या ब्रॉडकास्ट के थ्रू। समझे? इसीलिए कभी भी बिजनेस की डिटेल सोशल मीडिया मैसेज वगैरह में शेयर मत करो, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह में। ओके, तीसरा पॉइंट है इंप्रूव योर रिटर्न कम्युनिकेशन। बिकॉज जब आप वहां पे जब बंदे को मैसेज कर रहे होते हैं, जैसे मेरा एग्जैक्टली मैसेज क्या होता है मैं आपको वही बता देता हूँ। जब भी कोई पर्सन मुझे मैसेज करता है इंस्टाग्राम वगैरह में, तो मेरा एक सिंपल सा मैसेज होता है, ऑल राइट कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, मेरा नंबर रहता है, और और लास्ट में लिख देता हूँ मैसेज में फास्ट बिकॉज लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। इस तरीके से मैं कर देता हूँ। तो आपका वहाँ पे ना रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। एक अच्छा बहुत अच्छा से एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे एक टीममेट है, बहुत नया टीममेट है वो, मतलब भी एक हफ्ता ही हुआ होगा उसे। तो मैंने देखा कि ये सेम इशू उसके संग भी आया। ओके, तो उसने क्या लिखा कि भाई मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता बिकॉज बिकॉज यहाँ पे, मुझे ध्यान से रीजन वगैरह याद नहीं, बहुत लंबा सा मैसेज था। ओके, मतलब लंबा सा मैसेज था काफी। तो वहां से रिटर्न कम्युनिकेशन का पता चल गया। और मैं बिल्कुल भी डिमीन नहीं कर रहा हूँ कि रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बट इट कैन बी इम्प्रूव, वो इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, अगर जैसे मुझे कोई मैसेज करता है वहां पे, क्या बोलते हैं, अगर मुझे हिंदी में भी लिखना होगा ना, या अगर मुझे इंग्लिश में भी लिखना होगा, प्रीफर इंग्लिश करो। ओके, बिकॉज इंग्लिश हमेशा होता है कि थोड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है। ओके, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में भी अगर आप लिख रहे हो ना, कि कुछ भी मैसेज कर रहे हो इंस्टाग्राम वगैरह में, ठीक है, तो प्रीफर इंग्लिश, बिकॉज वो बहुत ज्यादा आपका बात में वजन डाल देता है। ओके, लोग आपको वहां से सर करके बोलने लग जाते हैं, तो वहीं से समझ लेना कि आपकी अथॉरिटी बन चुकी है अगर लोग आपको सर करके बात कर रहे हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, हैव डीपी एंड कैप हैव गुड डीपी एंड कैप्शन ऑन योर व्हाट्सएप। ओके, अब यार इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे अभी जो नए लोग होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कई बार क्या रहता है कि यार उनके जो कैप्शन, जो व्हाट्सएप में डीपी वगैरह रहती है, कैसी रहती है कि डीपी देख के क्या करोगे यार। ओके, इस तरीके के डीपी में लिखा रहता है, डीपी देख के क्या करोगे यार, और कैप्शन भी इस तरीके से कुछ लिखा रहता है, आड़ा टेढ़ा। अगर उनके इंस्टाग्राम खोल के देखो क्या लिखता है, विश मी ऑन दिस दिस दिस। डू यू रियली थिंक यार ये आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो? नहीं। ओके, एक प्रोफेशनल बंदा तो कभी इस तरीके से नहीं करेगा ना। तो अपने व्हाट्सएप में एक अच्छी सी डीपी, एक अच्छा सा कैप्शन लिख के रखो। ओके, आपको शायद ये चीज छोटी लग रही होगी, बट ये चीज ना बहुत ज्यादा मैटर करती है। समझे? बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब लोग यार स्टारबक्स में क्यों जाते हैं, अब लोग एक अच्छी जगह क्यों जाते हैं, एक लोग बहुत बड़े मॉल में क्यों जाते हैं? वहां पे कुछ डिफरेंट नहीं मिलता, वहां पे कुछ थोड़ा सा एनवायरनमेंट डिफरेंट मिलता है बस। ओके, जहाँ पे अब लोग पीवीआर में क्यों जाते हैं, पीवीआर में भी सेम मूवी लगती है और नॉर्मल हॉल में भी सेम मूवी लगती है, बट जो आप रेट का डिफरेंस देखोगे वो 3 गुना आता है। पीवीआर में लोग इसलिए जाते हैं बिकॉज वहां पे जो एनवायरनमेंट है वो अलग होता है, एक नॉर्मल हॉल में वो नहीं मिलता। समझ रही हो? तो आपको इन छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दूं अपना, मैं हर हर महीने में एक बार एटलीस्ट
अपना प्रोफाइल देखता हूँ और 10 बाकी लोगों का प्रोफाइल देखता हूँ जो मुझसे अच्छा कर रहे हैं, और देखता हूँ कि हर एक पर्सन की प्रोफाइल से मैं छोटा सा आइडिया क्या ले सकता हूँ। हो सकता है इसने ये वर्ड अच्छे से यूज करा हो सकता है इसने ये बायो अच्छा सा डाला हो, तो मैं उससे थोड़ा मॉडिफाई करके अपने में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करता हूँ। ओके, ये कुछ चीजें जो आपको हेल्प करी इंक्वायरी से लीड्स आपका बनाने में। ओके, आई नो इट्स बेसिक, बट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्रोस्पेक्ट, अब हैव आई आस्क्ड अ प्रेजेंटेशन वीडियो विद यू। अब प्रोस्पेक्ट कैसा होता है, जो आपके जिसको आप वीडियो वो समझाते हो, बिजनेस समझाते हो, वो आपका प्रोस्पेक्ट होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करा। आई आस्क्ड सर का प्रेजेंटेशन वीडियो आपके पास रेडी रहना चाहिए। ओके, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग भी होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि जब बंदा आपसे आके बिजनेस के बारे में पूछे तो आपको पहला कदम क्या, पहला स्टेप्स क्या लेना है, पहला आपको उसको क्या सेंड करना है। बहुत बार नहीं पता होगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे, कई बार नहीं पता होता लोगों को। ठीक है, तो अयाज सर का प्रेजेंटेशन वीडियो अपने पास रेडी रखो। अगर आपके पास खुद का नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं होता, तो अयाज सर का 30 मिनट का प्रेजेंटेशन वीडियो आपके पास लेटेस्ट वाला रेडी होना चाहिए, जिससे उसको बिजनेस के बारे में सब कुछ पता चल जाए। ओके, सेकंड पॉइंट, कनेक्ट विद योर लीड विद इन 24 आवर। ओके, अपनी लीड या प्रोस्पेक्ट से 24 आवर्स के अंदर अंदर कनेक्ट करो, बिकॉज उस टाइम वो बहुत ज्यादा हॉट होती है। ओके, अब वो कन्वर्ट होगी नहीं होगी, दैट्स अ सेकेंडरी केस, वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उसको बिजनेस तो समझ में आ ही जाएगा ना। होता क्या है कि हमारे फॉलोअप में बहुत सारे लोग होते हैं, हम बोलते हैं ना कि सर हमारे पास 200 लोग तो आए, बट 200 में से हमारे संग सिर्फ 2 लोगों ने स्टार्ट करा। वो इसीलिए होता है बिकॉज आपके आपके पास जो बाकी के 198 लोग हैं, या बाकी के जो लोग हैं, वो लोगों को बिजनेस के बारे में पता ही नहीं होता। वो लोग बिजनेस के बारे में एजुकेट या एडुकेट ही नहीं हुए होते। ओके, तो अपने जब बंदा आपके पास व्हाट्सएप में आ गया, तो सबसे पहला काम ये रखो कि मेरे को उसको एजुकेट करना है इस बिजनेस के बारे में, उसको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, समझे। दैट इज द थिंग। तीसरा जो हमारा पॉइंटर है, आस्क हिम हर टू वॉच द वीडियो फर्स्ट। बहुत सारे कई बार होता है कि यार लोग, कई बार होता है हमारे संग कि लोग हमारे को वो करते हैं, मतलब कि यार भाई 30 मिनट तो नहीं है वीडियो देखने के लिए, लेकिन आप मुझे कॉल में समझा दो। तो आपको कभी ये गलती नहीं करनी, बिकॉज जो बंदा आपको अपना मतलब आपको क्या मतलब अपनी वीडियो देखने में 30 मिनट नहीं दे सकता, आपकी वीडियो देखने में 30 मिनट नहीं दे सकता, कभी एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपके संग बिजनेस करेगा। सिंपल, ठीक है, कभी एक्सपेक्ट मत करो। तो पहले हमेशा वीडियो देखने के लिए बोलो। अब मैं आपको ना एक यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी दे देता हूँ, बिकॉज हम फर्स्ट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कई बार आपको शायद ऐसा होता है कि भाई आप वीडियो में मतलब मेरे को कॉल में बता दो ना। ओके, बहुत जिद करने लग जाते हैं, कुछ अड़ियल टाइप के लोग मिलते हैं। तो वहां पे ना सिंपल सा एक आंसर रखो। ओके, सिंपल सा एक आंसर रखो, वो ये कि देखो जो भी उसका नाम है XYZ, जैसे मोहित, ठीक है। ओके मोहित, देखो आपको मैं, देखो अगर आप मुझे बोल रहे हो कि मैं आपको बिजनेस 2 मिनट में कॉल में समझा दूं, ठीक है, या 5 मिनट में कॉल में समझा दूं, ठीक है, लेकिन उससे पहले ब्रदर जो भी आप अभी जैसे लेट से वो स्टडी कर रहा है, लेट से वो अभी 12th में है, तो उसके रिलेटेड एग्जाम्पल दो। ओके, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कि अभी आप 12th में हो, आपने पिछले 12 साल में क्या पढ़ा, आप मुझे 2 मिनट में बता सकते हो, 5 मिनट में बता सकते हो? नहीं बता पाएगा। आपने कॉलेज के 3 साल में क्या पढ़ा, आप मुझे बता सकते हो? नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए बोलो कि आपको भी मैं पूरा बिजनेस कॉल में नहीं समझा सकता या नहीं समझा सकती। ओके, इसलिए आपको पहले वीडियो देखना है, और अगर आप रियली में सीरियस हो, आप 30 मिनट अपने 2 वीडियो को देखने में, उसके बाद मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा या करूंगी। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब बंदा आपका लीड से प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगली चीज, फॉलोअप कैसे करना है, जो हमारा फोर्थ स्टेप है, चौथा स्टेप। ओके, पुट स्टेटस एंड स्टोरीज ऑन योर सोशल मीडिया व्हाट्सएप रेगुलरली। ओके, आप ना अंकुर वारिको के ऐड आजकल देख देख के पक गए होंगे, आजकल के बहुत टाइम से देख देख के पक गए होंगे। तो भाई वो उनका इतना फॉलोअप होता है, इतना फॉलोअप होता है, वो इतनी रीमार्केटिंग करते हैं ना, और वो तो पैसे देकर करते हैं। मैं तो आपको फ्री में बोलने करने को बोल रहा हूँ यार, रीमार्केटिंग जो आपकी लीड्स आ गई है, उनको रेगुलर बेसिस में स्टेटस स्टोरीज डालो। ओके, अब स्टेटस स्टोरीज में आप क्या डाल सकते हो, ये भी कुछ लोगों का डाउट रहता है यार, अभी अपना रिजल्ट नहीं है तो यार टीममेट के रिजल्ट डालो। टीममेट मेरा मतलब वो नहीं, बिकॉज आपका तो अभी ऑब्वियसली टीममेट नहीं होंगे। टीममेट मेरा मतलब है जो लीड जाके ग्रुप में लोग हैं। ओके, लीड जाके ग्रुप में मतलब जो फेसबुक के ग्रुप में लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे अचीवमेंट आते हैं कि यार आज मैंने अपने पेरेंट्स को ये दिलाया, आज मैंने इतनी अर्निंग करी, वो डालो। ओके, वहां से आपका फसल आएगा। इस तरीके से आपको फॉलोअप करना है, रेगुलर बेसिस में अपनी स्टेटस स्टोरीज डालो अपनी सोशल मीडिया में, अपने व्हाट्सएप में। ओके, सेकंड पॉइंटर वही है, रिजल्ट डाल सकते हो, अचीवमेंट डाल सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस डाल सकते हो, वहां पे आप मोटिवेशन यूज कर सकते हो, बिकॉज वो सिर्फ 24 घंटे के लिए रहता है। लेकिन अगर आप एज अ कंटेंट मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहे हो तो वो वर्क नहीं करेगा। ओके, स्टेटस स्टोरीज में तो कई बार मैं भी राहुल भटनागर सर की या कई बार बहुत डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो शेयर कर देता हूँ, जो मुझे लगता है जैसे अमन दत्तरवाल की, जो मुझे लगता है कि हाँ इस पर्सन की शेयर करनी चाहिए। ओके, बिकॉज उनको कुछ लोग जान रहे होते हैं, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करता है।
तो स्टेटस स्टोरीज में वो चलता है अपना। ओके, मेक ब्रॉडकास्ट नहीं है व्हाट्सएप, बहुत सारे लोगों को हो सकता है आप में से ब्रॉडकास्ट भी ना पता हो, तो ब्रॉडकास्ट वगैरह आप प्रॉपर बनाओ, इसके बारे में आपको फॉलोअप वाली ट्रेनिंग में प्रॉपर मिल जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट आप बनाओ, ब्रॉडकास्ट आप कितनी बार करना है आपको, हफ्ते में 2 से 3 बार ब्रॉडकास्ट करने से ज्यादा मत करना, फिर आपका जो ब्लॉक करने का रेशियो होगा वो आपको बढ़ जाएगा, लोग आपको ब्लॉक करने लग जाएंगे। ओके, तो ब्रॉडकास्ट आप हफ्ते में 2 से 3 बार, वो बढ़िया रहता है। फोर्थ पॉइंटर, योर लीड विल नर्चर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे जो भी लीड आपके पास आ रही है आज के टाइम पे, और अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रही है ना, तो वो ऐसे नहीं कि वो बेकार लीड है। वो जैसे आज कई बार ऐसा होता है कि मेरे संग ऐसी लीड आती है जो मेरे पास मेरी 10वीं लीड थी, मेरी 20वीं लीड थी, या मेरी 50वीं लीड थी। ओके, तो कई बार आज वो भी कन्वर्ट होती है, मैं देखता हूँ यार कब कब की है वो, मतलब 1-1.5 साल पहले की लीड है, वो भी कन्वर्ट होती है। ओके, तो वो लीड बेकार नहीं है जो आज कन्वर्ट नहीं हो रही, जस्ट उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, एंड योर लीड विल नर्चर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो वो आपका लीड है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नर्चर होता है। ओके, सेकंड पॉइंट जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो ये सेल्स। अब बहुत सिंपल है, तो लर्न हाउ टू टॉक ओवर कॉल। आपको सीखना पड़ेगा कि आप कॉल में कैसे बात कर सकते हो, कैसे बात आपको करनी है। इसके ऊपर मैंने लीड जाक में ही डिटेल सेशन एक आपको मिल जाएगा पोर्टल में। ओके, प्रॉपर बता रखा है कि बिजनेस A to Z कैसे कैसे एक्सप्लेन करना है। तो सीखो कॉल में कैसे बात करनी होती है, लर्न हाउ टू एक्सप्लेन बिजनेस ओवर कॉल। लोगों को पता ही नहीं होता भाई, लोगों की बिजनेस कैसे एक्सप्लेन करना है, और दे आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी सेल आ जाए, नहीं आएगी। ओके, एक फंडा देता हूँ, देखो लोग ना बिजनेस हमेशा उस इंसान के संग करना पसंद करते हैं जो हमसे लेवल में ऊपर है। मैं कभी बिजनेस क्या है, हम कनेक्ट भी उन्हीं लोगों से होना पसंद करते हैं। मैं कभी भी उन लोगों से कनेक्ट होना पसंद नहीं करूंगा जो मुझसे नीचे है लेवल पे, जो मुझे कुछ सिखा नहीं सकते। ओके, तो आपको ना वो दिखाना पड़ेगा कॉल में, अपने पर्सन को दिखाना पड़ेगा, मतलब उस तरीके से बात करना पड़ेगा, अपना कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आप उससे ज्यादा जानते हो इस चीज के बारे में। ओके, होता क्या है कि आपका प्रोस्पेक्ट ही आपको कॉल में डोमिनेट कर लेता है, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि सेल क्यों नहीं आ रही। ओके, नहीं। ओके, तो आपको सीखना पड़ेगा कॉल में कैसे बिजनेस को एक्सप्लेन करते हैं या कैसे बात करते हैं, वो आपको डिटेल में मिल जाएगा सेशन। ओके, लर्न हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन। इसके ऊपर भी हमने दो ट्रेनिंग ली थी, एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर और कॉल के ऊपर। ओके, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। ओके, अपने कम्युनिकेशन को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अच्छे लोगों को सुनकर। ऑफलाइन नहीं मिलते अच्छे लोग तो ऑनलाइन सुनो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको आप सुन सकते हो, वहां से अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करोगे। अगर आप मेरा कम्युनिकेशन उठा के देखोगे, चाहे आप मेरा यूट्यूब में देखो, चाहे आप मेरा इंस्टाग्राम पे देखो, कहीं पे भी देखो, आपको ऐसा लगेगा मतलब कुछ पता ही नहीं है कि क्या बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन टाइम के संग बोलते हैं ना कि टाइम के संग हर चीज इंप्रूव हो जाती है, अगर आप रेगुलर बेसिस में कंसिस्टेंटली लगे हुए हो तो इंप्रूव हो गया। ओके, लर्न हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी ओवर कॉल, जो हमारा फिफ्थ पॉइंटर है। आपको अर्जेंसी क्रिएट करना आना चाहिए। जैसे आज आप किस चीज की अर्जेंसी दे सकते थे कि आज हमारा शाम को 7 बजे सेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी लोग 7 बजे से पहले पहले स्टार्ट करेंगे उनको मैं सेशन दूंगा या दूंगी। ओके, सेशन का एक्सेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी आनी चाहिए, बिकॉज होता क्या, सेल्स का एक फंडा होता है कि लोग ना हमेशा अपने बाइंग डिसीजन को डिले करते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, पैसे पे करने हैं ना, तो आज नहीं कल कर लेंगे। बट जब तक उनको एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मिलेगा ना कि आज करके मुझे क्या फायदा मिलेगा, मुझे क्यों आज करना चाहिए, मुझे क्यों कल नहीं करना चाहिए, वो होना बहुत जरूरी है। उसी को अर्जेंसी बोलते हैं। वो भी मैंने आपको कॉल वाले सेशन में या क्लोजिंग वाले अपने सेशन में डिटेल में बता रखा है, डिटेल में कि क्या अर्जेंसी दे सकते हो। ओके, जस्ट आपको देखना है। ठीक है, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में क्या, कंप्लीट ऑल योर ट्रेनिंग्स, यही यही ट्रेनिंग्स है जो आपको सीखनी होती है, जो मैंने या बाकी लोगों ने करी हुई होती है। ओके, ये 5 स्टेप्स है आपकी सेल्स के। लीड्स इंक्वायरी, लीड्स, प्रोस्पेक्ट, फॉलोअप, सेल्स, और मैंने हर एक स्टेप को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। ओके, तो ये आपका बेसिक्स है। ओके, अब हाउ यू कैन लर्न ऑल ऑफ दिस, जो मैंने बताया, वॉच डिफरेंट टॉप अर्नर्स ट्रेनिंग, जो अपने, और मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कहीं बाहर जाके सीखने की जरूरत है एक्स्ट्रा पे करके, अगर आप अपने लोगों की ही ट्रेनिंग देख लोगे ना अच्छे से, अपने पोर्टल की ट्रेनिंग को ही अच्छे से देख लोगे ना, इनफ, मोर देन इनफ। ओके, एंड यू विल लर्न इट बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती है, सब चीज प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकती है। ओके, अगर आप रेगुलर बेसिस में लगे हो तो हर चीज आप इंप्रूव कर सकते हो, अपनी क्लोजिंग को, अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को, अपनी लीड जनरेशन को, अपनी प्रोफाइल को, हर एक चीज, अपनी कंटेंट क्रिएशन को, हर एक चीज आप अपना टाइम के संग इंप्रूव कर सकते हो। ओके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और अगर स्टार्टिंग में आपके पास लीड्स भी नहीं आ रही ना कि आप क्लोजिंग वगैरह को, तो मैं क्या करता था, मैं वो भी बता देता हूँ। आप किसी ना किसी एक बंदे को तो जानते होंगे लीड्स आक में। ओके, उसके संग
कॉल में बात करने लग जाओ कि एक बार तू लीड बन, एक बार मैं लीड बनूंगा, एक बार तू क्लोजिंग कर, एक बार मैं क्लोजिंग करूंगा। भाई प्रैक्टिस तो करी जा सकती है ना। ओके, जिसको करना होता है वो कहीं से भी रास्ता निकाल लेता है, बट जिसको नहीं करना होता ना, वो दूसरे को देखकर बस ये फील करता है कि भाई मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा। ओके, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी में आना है। गॉट इट। कुछ पॉइंटर्स है जो मैंने लिखे, जो आपको ध्यान रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर गेटिंग योर फर्स्ट सेल। ओके, सबसे पहला ही पॉइंटर है, ओके, फर्स्ट सेल इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन द ब्यूटीफुल सेल। अब मैंने डिफिकल्ट एंड ब्यूटीफुल क्यों लिखा है, उसका रीजन देखो। डिफिकल्ट इसीलिए बिकॉज आपको भी एक्सपीरियंस नहीं है। आपको जॉब पे हो सकता है, आपको जो प्रीवियस जॉब है आपको उसका एक्सपीरियंस हो सकता है आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको स्टडी का एक्सपीरियंस हो, आपको ऑनलाइन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, आपको ऑनलाइन लोगों से, स्ट्रेंजर से बात करना का वो नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। तो इसीलिए आपके लिए फर्स्ट सेल डिफिकल्ट सेल होती है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल क्यों है? ब्यूटीफुल इसीलिए है बिकॉज आपने आज तक एक पैसा ऑनलाइन नहीं कमाया। तो अगर आप ऑनलाइन कुछ भी, मतलब कुछ 100 में छोड़ देते, अगर आप 10 रुपए भी ऑनलाइन कमाते हो, 50 रुपए भी ऑनलाइन कमाते हो ना, वो अच्छा लगता है, क्योंकि आपके बाहर गली गली तक कोई ऑनलाइन पैसा नहीं कमाता होगा। मेरे तो स्पेशली कोई नहीं कमाता। ओके, तो इसीलिए फर्स्ट सेल इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द ब्यूटीफुल सेल, मैंने फर्स्ट पॉइंटर यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंटर, इट विल टेक एटलीस्ट, इससे ज्यादा भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है, बट एटलीस्ट जो टाइम पीरियड मेरे को लगा था एटलीस्ट, वो होता है 20 से 25 दिन या 25 से 30 दिन आपको टाइम लगता ही है आपको फर्स्ट सेल लाने में। ओके, और वो तब लगता है जब आप इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आपने कोर्स को लेकर रख दिया, अगर आप कोर्स को लेकर कहीं और बिजी हो गए, प्लीज अपने स्पॉन्सर को ब्लेम मत करो, प्लीज किसी और को स्पेशली ब्लेम मत करो, बिकॉज गलती सिर्फ आपकी है। ओके, बिकॉज आपने टाइम ही नहीं दिया जो ये बिजनेस मांगता है। समझे? दैट इज द थिंग। तो एटलीस्ट 25 से 30 दिन का आपको टाइम लगता है आपकी फर्स्ट सेल लाने के लिए। गिव एटलीस्ट 1 मंथ टू ट्रेनिंग। जो 30 दिन देने हैं वो कहाँ पे देना है वही मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास चाहे लाइट है, चाहे स्टैंडर्ड है, चाहे प्रो है, उस कोर्स को आपको टाइम देना है। अयास सर की बहुत सारी ट्रेनिंग है, जो मैंने आपको सेल्स प्रोसेस बताया ना, मैंने कहीं से नहीं सीखा है, मैंने अयास सर से ही सीखा है। अयास सर की ट्रेनिंग है इसके ऊपर एक डिटेल में। ओके, तो मैं आपको कुछ डिफरेंट नहीं बता रहा, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने कहीं ना कहीं से सीखा है। ओके, अयाज सर की इंटरनल टीम ट्रेनिंग जो हुई है, मतलब जो पहले की डली हुई है, वो आपको देखनी है। आपको पोर्टल में मिल जाएगा, लास्ट में जब जाओगे तो आपको मिल जाएगी। लीड्स आकी इंटरनल टीम ट्रेनिंग, जैसे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो बहुत सारे बाकी लोगों की ट्रेनिंग हुई है। तो यार आपको ये तो लगता ही होगा ना कि जो बंदा ऑलरेडी अभी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए कमा चुका है, वो कुछ ना कुछ तो आपसे ज्यादा जानता होगा। तो क्यों ना उसी से सीख लिया जाए। तो उनकी ट्रेनिंग देख के तो आप सीख ही सकते हो ना, भले आप उनसे कॉल में बात नहीं कर सकते। ओके, तो उनकी फ्री वाली जो ट्रेनिंग हुई है आप लोगों के लिए, आप वो तो देख ही सकते हो ना। ओके, मैं लीड्स की जो ये ट्रेनिंग होती है ना, मैं इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट रहता हूँ, या फिर मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि यार कोई ना कोई बंदा जो अर्निंग कर रहा है ना, जो अच्छा अर्निंग कर रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा सिखा के चले जाएगा जो मुझे नहीं आता। समझे? और अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है ना, तो माइंडसेट ही अपना ये रखो कि यार अभी आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि तभी आप सीखने के लिए रेडी होते हो। अगर आपका ये माइंडसेट है ना, जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई मैंने सब कुछ फॉलो कर लिया बट मुझे रिजल्ट नहीं आया। ओके, प्रोफाइल में होती है 10 पोस्ट। ओके, एक बंदे से बात नहीं करी होती आज तक। ओके, तो अपना माइंडसेट ये रखो कि मुझे कुछ नहीं आता, तभी आप खुद को रेडी करते हो, प्रिपेयर करते हो सब कुछ सीखने के लिए। बट अगर आप ये माइंडसेट रखोगे मुझे सब कुछ आता है, आप कुछ नहीं सीख पाओगे, बिकॉज आपने अपने दिमाग का ढक्कन को ही बंद कर लिया। ओके, आप फोर्थ पॉइंटर है कि आप मेरी कुछ यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। मैंने यूट्यूब में क्लोजिंग से रिलेटेड स्पेशली बहुत सारी वीडियोस डाली है। माई लाइव कॉलिंग ऑन यूट्यूब, मैंने यूट्यूब में लाइव कॉलिंग भी डाली अपनी, जहाँ पे क्लोज करा है मैंने पर्सन को स्टैंडर्ड या प्रो वाले पैकेज से। 2-4 वीडियोस आपको मिलेगी, दो ही वीडियोस आई थिंक, वो भी आप देख सकते हो। ओके, तो एटलीस्ट आपको जो 1 मंथ मैंने बोला ना लगेगा, वो आपको यहाँ पे डेडिकेटेड होकर देना है, तब आपको 1 मंथ लगेगा। अगर आप 15 दिन के लिए गायब हो जाओगे ना, फिर आपको ज्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। ओके, फॉलो टॉप अचीवर्स ऑफ लीड्स, आई कैन ऑब्जर्व देम। लोगों को ऑब्जर्व करना सीखो। आपके लीडर बोर्ड में जब आपने पोर्टल में लॉग इन करते हो, आपको लीडर बोर्ड दिखता है। लीडर बोर्ड में जब आप देखोगे ना, तो वहाँ पे ऑल टाइम, मंथली और आपको वीकली वो दिखेंगे टॉप अर्नर्स, जिन्होंने जो अच्छा कर रहे हैं। तो उनको फॉलो करो ना, उनको ऑब्जर्व करो ना कि यार अगर ये बंदा अर्निंग कर रहा है और मैं नहीं कर रहा, तो मैं क्या इससे अलग कर रहा हूँ, या ये मुझसे क्या अलग कर रहा है। उनको ऑब्जर्व क्यों नहीं करते? ओके, बिकॉज स्टेप्स तो वही है। अगर एक बंदे को ये चीज फॉलो करके रिजल्ट आया है, तो आपको भी ये चीज फॉलो करके तो रिजल्ट जरूर आएगा ही ना। ओके, बट होता क्या है कि हम कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते, हम ब्लेम ब्लेम करने वाले माइंडसेट में चले जाते हैं। तो टॉप अचीवर्स को आपको फॉलो करना है।
और वहीं से आप अच्छा कंटेंट डालना सीखोगे, अच्छा पोस्ट वगैरह डालना सीखोगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंटर है जो यू हैव टू वर्क ऑन एफबी एंड इंस्टाग्राम। स्टार्टिंग में मेरा ये मानना है कि आपको 2 प्लेटफॉर्म में काम करना चाहिए सिर्फ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत सारा नहीं जाना चाहिए और बहुत कम में भी नहीं जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आपको फेसबुक में और इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। थोड़ा सा और डिटेल में अगर बताऊं, तो स्टार्टिंग में मैंने फेसबुक में काम करा और इंस्टाग्राम में अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर काम स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में आपको जो फर्स्ट सेल आएगी ना, मोस्टली होता क्या, फेसबुक से आई थी मुझे स्पेशली फर्स्ट सेल, ग्रुप प्रमोशन से ऑर्गेनिकली। ओके, और लोग ये बोलते हैं ना, लोगों के माइंड में ये भी डाउट रहता है कि यार भाई अभी तो ऐड चलाते हैं लोग। भाई ऐड चलाते हैं, लेकिन ऐड से पहले ऑर्गेनिक काम करा। मुझे 10 लाख तक ऐड आता भी नहीं था। ओके, ऐड मैंने आई थिंक 7-8 महीने पहले सीखा है चलाना, कि कैसे चलाते हैं। 10 लाख तक ऐड भी नहीं आता था। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार आज के टाइम पे ऐड से ही सिर्फ होता है, नहीं यार, आपकी गलत फहमी है। ऐड आप चला सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप पहले 50,000 तक एटलीस्ट ऑर्गेनिक करो। आई नो टाइम ज्यादा लगेगा, बट वो टाइम आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। क्लोजिंग वगैरह जो है बेसिक अपने बिजनेस का, वो आपको सब ऑर्गेनिक से सीखने को मिलेगा। ओके, अगर आपने ऐड वगैरह चलाकर लीड जनरेट भी कर ली, बट आपको आता ही नहीं है क्लोजिंग करना, तो आप कैसे क्लोजिंग कर लोगे? समझे? कैसे क्लोजिंग कर लोगे? नहीं कर पाओगे अगर आपको आता ही नहीं है। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको फेसबुक में करना है, ग्रुप प्रमोशन वगैरह, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करके, साथ ही साथ अपने इंस्टाग्राम को भी बिल्ड करते चलना है। ओके, ये है नेक्स्ट चीज जो, अंडरस्टैंड योर बिजनेस एंड योर प्रोडक्ट फर्स्ट। पहली बात तो अपने बिजनेस को कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर सेलिंग, उसको अंडरस्टैंड करो। आप कोई बंदा एक ऑब्जेक्शन फेंक देगा कि यार भाई यहाँ पे तो आप यार जो आपने परचेस करा वही आप मुझे बेच रहे हो, वही मुझे आगे बेचना है। आपको टाइम टाइम फिक्स हो जाइए, आपको आप उसको ऑब्जेक्शन का आंसर ही नहीं कर पाओगे। ये होता है। ओके, इसीलिए आपको पहले बिजनेस को समझने में, और ये भी मैंने डिटेल में बता रखा है आपको, जो आपके पोर्टल में ट्रेनिंग में बार बार बोल रहा हूँ। ओके, मैंने उसमें भी डिटेल में बता रखा है। तो अपने बिजनेस को पहले अच्छे से एक्सप्लेन करो, अपने प्रोडक्ट को पहले अच्छे से एक्सप्लेन करो। ओके, अगर आप देखो, अगर आप डिजर्विंग नहीं हो ना, आपको यू वोंट गेट योर फर्स्ट सेल, आपको फर्स्ट सेल नहीं आएगी, आपको डिजर्विंग बनना पड़ता है उतना। ओके, ठीक है, मेरा ये मानना है कि भगवान ने अब सबके लिए इतना इतना इतने इतने रुपए का चेक काट रखा है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट का चेक काट रखा है। लेकिन पहले आपको ये डिजर्विंग बनना पड़ता है, पहले आपको ये दिखाना होता है कि हाँ भाई मैं इस चेक के बराबर का डिजर्व करता हूँ, तब वो वहां से आपको चेक मिलता है, तब वहां से आपको पैसा आता है। समझे? उतना डिजर्विंग आपको बनना पड़ता है। दैट इज द थिंग। बी कॉन्फिडेंट वाइल डूइंग योर फर्स्ट सेल। अब यहाँ पे ना एक बहुत वो आता है कि जैसे यहाँ पे भी आया था बहुत सारे लोगों का पहले, क्या लोग ना पैसे वो पूछते हैं कि आपने कितनी अर्निंग कर ली, आप अपना डैशबोर्ड दिखाओ। पहली बात तो मैं आपको ये, पहली बात आप लोगों को ये अपना बिलीफ सेट रखना है कि लोग क्या सोचते हैं कि एक बंदे, इस बंदे ने 50,000 के डैशबोर्ड से या 1 लाख के डैशबोर्ड से स्टार्ट करा होगा। ओके, यार आज ये तो रिजल्ट दिखा दिखा के अर्निंग कर लेता है भाई, लेकिन उसने भी तो जीरो के डैशबोर्ड से ही स्टार्ट करा ना, जैसे आज आपने करा है। ओके, तो पहला तो अपना ये माइंडसेट रखो कि हर एक बंदा जीरो के डैशबोर्ड से ही स्टार्ट करता है। ओके, अगर आपके पास, दोबारा से एक बार बोलता हूँ आपको, अगर आपके पास बहुत सा, मतलब अगर आपके पास 1 लाख का डैशबोर्ड है, बट आपके पास स्किल सेट नहीं है ना, आप उस 1 लाख के डैशबोर्ड को 2 लाख नहीं पहुंचा सकते। बट अगर आपके पास वो स्किल सेट, वो कॉन्फिडेंस है, आप बहुत कम टाइम के अंदर उस जीरो के डैशबोर्ड को 1 लाख तक पहुंचा सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब अगर इसका एक प्रैक्टिकल आंसर दूं कि जब कोई पर्सन आपसे पूछे कि कैसे आपकी आपकी अर्निंग तो नहीं हुई, ओके अंडरस्टैंड नहीं हुई, ओके, उसको सिंपली ये बोलो कि मैंने जस्ट अभी 10 दिन पहले बिजनेस को स्टार्ट करा है। फॉरगेट कि आपने कितने दिन पहले स्टार्ट करा। ठीक है, जब कोई पर्सन आपसे फर्स्ट टाइम कॉल में कनेक्ट कर रहा है, उसको ये बोलो कि मैंने अभी जस्ट 10 दिन पहले स्टार्ट करा है। ओके, और अभी मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। ओके, डेफिनेटली इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम जहाँ पे आज पैसा लगाए 2 का 4, 4 का 8 हो गया। इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम, समथिंग लाइक दैट। ओके, आपको उसको ये बोलना है कि मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, बट डेफिनेटली इस मंथ के एंड तक, ओके, मेरी 15,000 या 20,000 की अर्निंग आप अपने हिसाब से इतनी हो जाएगी। ओके, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, सिंपल। फिर भी हो सकता है वो पर्सन या आप बंदा या बंदी आपके संग बिजनेस ना करे। ओके, हो सकता है ना करे। ओके, बट वो जंक नहीं हुआ, वो आपके संग आगे चल के डेफिनेटली करेगा जब वो आपके स्टेटस वगैरह रेगुलर बेसिस में फॉलो अप करता रहेगा ना। ओके, अब जैसे मैंने अंकुर वारिको सर का कोर्स लिया था, मैंने पहली बारी में परचेस नहीं करा था। मैंने जब उनके बार बार ऐड दिखने लग गए ना,
तब जाके मैंने परचेस करा। तो इस चीज के फॉलोअप के प्रोसेस को सिर्फ हम लोग ही यूज नहीं करते, इसको हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री में यूज करा जाता है, समझे? वो चीज है। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल आंसर करना है, और वहां पे ना आपका कॉन्फिडेंट, आपकी टोनैलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप किस तरीके से आंसर कर रहे हो। ओके, आप वही बता सकते हो जो आपको खुद आता है। ओके, तो इसलिए पहले खुद ट्रेनिंग लेकर सीखना स्टार्ट करो। ओके, हर एक ऑब्जेक्शन का आंसर सीखना स्टार्ट करो, कैसे बिजनेस को समझाया जाता है सीखो। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म को मैं फोकस करने से मेरा सिंपल यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ सेल 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 के पीछे भागते रहोगे, इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म। सेल आ भी गई ना, दूसरी सेल भी तो लानी है, तीसरी सेल भी तो लानी है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ 2 सेल करके अपने पैसा आ जाए, हो गया जी, छोड़ दिया, फिर तो आप स्टार्ट नहीं करते, वही ठीक रहता। लॉन्ग टर्म में फोकस करने से मेरा मतलब है कि लॉन्ग टर्म में फोकस करना से सिंपल सा मतलब ये है कि अपनी स्किल्स में साथ साथ काम करते रहो। ओके, अपनी नॉलेज को हर दिन इम्प्रूव करते रहो। ओके, आपने आज नया क्या सीखा, आपने कल क्या नया सीखा। ओके, हर दिन, और वो ही आपको लॉन्ग टर्म में आगे चल के रिजल्ट देगा। ओके, बिजनेस करो, अर्निंग करो, बट लॉन्ग टर्म में आप कैसे फोकस कर सकते हो, जब आप वो प्रोडक्ट बनते हो जो एटलीस्ट 10,000 रुपये महीना या 50,000 रुपये महीना या 1 लाख रुपए महीना डिजर्व करता है। जब आप वो प्रोडक्ट बनते हो, वो प्रोडक्ट आप तभी बन सकते हो जब आपको नॉलेज है, समझे? ओके, तो यही मेरा एक सिंपल सा मतलब है लॉन्ग टर्म में फोकस करने से। इन 4 पिलर, अब देखो जैसे ये लेट से कार है, ठीक है, ये कार है लेट से, इसके 4 पहिए होते हैं कार के, ठीक है। तो पहला पहिया अपने बिजनेस का क्या है, प्रोफाइल। ओके, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, आपकी दुकान बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपका बायो कंटेंट वगैरह जो आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में बताया गया है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, उस दुकान में जो सामान है, आपकी प्रोफाइल में जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। रीच, आपको ज्यादा लोगों तक रीच आउट करना पड़ेगा। अगर आप अब ज्यादा लोगों तक कैसे आप रीच आउट कर सकते हो, वो ऐसे कि रील्स बनाना स्टार्ट करो। ओके, रील्स के बहुत सारे सेशंस हुए हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं कई बार यूट्यूब में कोई भी जैसा डिजिटल धैर्य की कई सारी मैं वीडियोस देख लेता हूँ यूट्यूब में। ओके, कोई पैसा तो नहीं लगता, यूट्यूब का फ्री में ही है हम सबके लिए तो। ओके, तो वहां पे जाके मैं कई बार देख लेता हूँ कि इंस्टाग्राम पे कैसे वर्क करा जा सकता है, और अपने लोग और अपने कंटेंट को क्रिएटिव या अट्रैक्टिव या ज्यादा लोगों तक कैसे रीच आउट करा जा सकता है। ओके, तो रीच आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज अगर आप ज्यादा लोगों तक रीच आउट ही नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं आएगी लीड्स, नहीं आएंगे लोग आपके पास। ओके, ऐड से क्या होता है, ऐड से आपका काम आसान हो जाता है। आपको, आप इंस्टाग्राम को कुछ पैसे देते हो, फेसबुक को कुछ पैसे देते हो, वो आपको इतने पैसे में कुछ 1000 लोगों तक पहुंचा के दे देता है। ओके, यही तो होता है ऐड से, समझे? एंड फोर्थ पिलर जो हमारे बिजनेस का है, दैट इज योर कम्युनिकेशन, एंड जिसको हम क्लोजिंग स्किल्स भी अपना बोल सकते हैं। ओके, जब ये 4 पिलर अच्छे होंगे ना, तो आपसे फर्स्ट सेल ही नहीं, आप बहुत जल्दी अपना 10,000, बहुत जल्दी अपना 50,000 भी कंप्लीट कर रहे होंगे। ओके, दैट इज द थिंग। डू नॉट एक्सपेक्ट फर्स्ट सेल बिफोर एटलीस्ट 50 लीड्स। 50 लीड से पहले फर्स्ट सेल एक्सपेक्ट मत करो। इवन मैं तो ये कई बार मैं तो 50 से 100 लीड्स बोलता हूँ, ठीक है, बट आपके लिए एटलीस्ट अगर आप बहुत मेहनत भी करो ना, 50 लीड से पहले अपना फर्स्ट सेल एक्सपेक्ट मत करो, एक्सपेक्टेशन को जीरो कर दो एटलीस्ट 50 लीड से पहले। ओके, हम क्या सोचते हैं कि यार एक बंदे ने कांटेक्ट करा, यही हमारा पहला वो बंदी पहला कस्टमर बन जाएगा, नहीं यार। ओके, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि भाई अभी आपको ना 50 लीड्स से जब आप बात करोगे ना, आप इतने नर्चर हो चुके होंगे, आप इतना लाइक इतने कॉन्फिडेंट बन चुके होंगे ना, कि जब आपका फिर फर्स्ट सेल आएगा ना, ये जो बाकी के 50 लोग हैं जिन्होंने आपसे नहीं परचेस करा, जिन्होंने आपके संग स्टार्ट नहीं करा ना, ये लोग भी आगे चल के आपके संग स्टार्ट करेंगे, आपके कस्टमर बनेंगे। ओके, तो पहले 50 लीड से पहले, 50 लोगों से बात करने से पहले अपना फर्स्ट सेल एक्सपेक्ट मत करो। मुझे आज भी याद है, मुझे जो फर्स्ट सेल आई थी, मुझे 32 डेज के बाद आई थी। ओके, 32 दिन के बाद आई थी, और 66, 66 बोलते हैं, 66 लोगों से बात करने के बाद मुझे मेरी फर्स्ट सेल आई थी। ओके, और मेरे संग अभी तक इस बिजनेस में सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिनको मैं पहले से जानता था, मतलब नोन जो लोग थे, बाकी सब मेरे पास सोशल मीडिया से आए हैं। अराउंड 450 लोगों ने अभी तक स्टार्ट करा है, और सारे लोग मेरे पास सोशल मीडिया से आए हैं। 450 नहीं, आई थिंक 450 500 के आसपास होंगे, और सारे लोग सोशल मीडिया से आए हैं। ओके, बट वो बिल्ड होने में ना टाइम लगेगा। ओके, मैंने 700 पोस्ट भी तो डाली है अपने इंस्टाग्राम पे। ओके, दैट इज द थिंग। ओके, एंड लास्ट पॉइंटर है ये मे बी,
डोंट डिपेंड ऑन योर स्पॉन्सर। प्लीज अपने स्पॉन्सर के ऊपर मत डिपेंड हो। प्लीज अगर आपने उसके संग स्टार्ट करा है, मत एक्सपेक्ट करो कि भाई वो हमें सेल्स लाके देगा। आपने खुद के लिए स्टार्ट करा है, उसने अपना जो ड्यूटी है आपको स्टार्ट करवाया। ओके, आपके डेफिनेटली कुछ जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, बट वो होता है ना डिपेंडिंग वाला कि यार अब तो ये सेल्स लाके देगा, भाई मेरी 2 सेल कर दो ना, भाई मेरी एक फर्स्ट सेल कर दो ना। वो मत, उतना डिपेंड मत रहो अपने स्पॉन्सर के ऊपर। ओके, मैं कभी अपने स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंड नहीं रहा इस बिजनेस के लिए, समझे? तो अपने स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंड मत रहो, ठीक है? आप कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो, आप नहीं करोगे आपका खुद का लॉस है, समझे? एंड लास्ट चीज, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन नथिंग विल गोना हैपन। अब मैंने इतनी सारी चीजें बताई कि यार ये ट्रेनिंग देखो, इसको ऐसे ऑप्टिमाइज करो, इसको ऐसे ऑप्टिमाइज करो। बहुत सारे लोग पता है क्या होंगे, ट्रेनिंग को सुना, 338 लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग क्या होंगे, भाई ट्रेनिंग को सुना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कल से दोबारा वही रेगुलर एक्टिविटी में। ओके, कल से वही जितना टाइम 1 घंटा आधा घंटा दे रहे थे ट्रेनिंग को, देख नहीं रहे थे, कल से दोबारा उसी एक्टिविटी में लग जाएंगे। क्योंकि ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा। और बहुत कम लोग होंगे जो इम्प्लीमेंट करेंगे। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप अभी तक इस ट्रेनिंग में हो तो आप उन बहुत कम लोगों में ही आते हो। ओके, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। इम्प्लीमेंट के बिना कुछ नहीं होने वाला। ओके, एक स्टोरी यहाँ पे आपको मैं शेयर करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है स्टोरी। एक बार ना दो लोग होते हैं, दो फ्रेंड्स होते हैं, दो दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है राम, एक का नाम होता है श्याम, जो हमने अपने टेक्स्ट बुक में बहुत बार सुना है। ठीक है, राम और श्याम एक बार डिसाइड करते हैं कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे जहां पे हम गाय को खरीदेंगे और गाय का दूध बेचेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। राम बोलता है, नहीं सॉरी, श्याम बोलता है कि बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं अपनी घर जाता हूँ, अपनी वाइफ से पूछता हूँ और फिर मैं तेरे को कल हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। वो अपनी वाइफ के पास जाता है, वो बोलता है उसका प्रॉपर बिजनेस वगैरह अच्छे से समझाता है अपनी वाइफ को। उसकी वाइफ पता है क्या बोलती है कि बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, पैसा भी आएगा। ठीक है, राम और श्याम क्या डिसाइड करते हैं, दोबारा से एक बार सुनो, कि बिजनेस, हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहां पे हम गायों मतलब गाय खरीदेंगे, उनका दूध बेचेंगे, दूध बेच के जो पैसा आएगा हम सेव करेंगे और फिर हम दूसरी गाय खरीदेंगे। ठीक है, श्याम अपने घर जाता है, अपनी वाइफ को बिल्कुल बताता है कि राम ने ऐसा ऐसा बिजनेस बताया कि हम पहले एक गाय खरीदेंगे, उसका दूध बेचेंगे, फिर दूसरी गाय को खरीदेंगे। उसकी वाइफ जो होती है वो रिप्लाई करती है, वो आंसर करती है कि बिजनेस तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा दूसरी गाय को खरीदने से पहले पहली गाय भी मर गई तो फिर तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा ना, नुकसान हो जाएगा। हाँ ये बात तो ठीक है, श्याम बोलता है, बात तो ये बिल्कुल सही कही आपने। वो कल सेम कहानी अपने दोस्त राम को जाके बताता है। उसके बाद क्या होता है कि राम आंसर करता है कि ठीक है, तू मत स्टार्ट कर, मैं करके देखता हूँ, जो होगा मेरे संग होगा। ठीक है, राम स्टार्ट कर लेता है अपना बिजनेस। 5 साल बाद दोनों मिलते हैं। ठीक है, 5 साल बाद दोनों मिलते हैं, ध्यान से सुनना। राम ऊपर उठ चुका होता है काफी अपनी लाइफ में, अपने पैसे में बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुका होता है। श्याम वहीं का वहीं रहता है। श्याम उससे क्वेश्चन पूछता है कि यार 5 साल पहले तो हम सेम जगह थे, सेम बिजनेस स्टार्ट करने का हम सोच रहे थे, सेम जगह हम रहते थे, सेम पैसा हम कमा रहे थे, लेकिन तू इतना ऊपर उठ गया और मैं यहीं का यहीं क्यों रह गया? पता है राम क्या रिप्लाई देता है कि तेरी गाय तूने खरीदने से पहले ही तूने अपनी गाय को मार दिया था। ओके, मतलब तूने एक्शन लेने से पहले ही 10 चीजें, 10 एक्सक्यूज बना दिए थे और मैंने एक्सक्यूज नहीं बनाए। ये मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप अभी इस ट्रेनिंग के बाद बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे, बहुत सारी चीजें ट्राई करोगे, बहुत बार आप फेल होगे, बहुत बार आपको लगेगा कि यार नहीं हो रहा है यार, ठीक है क्या कंटेंट डाल रहे हो, मैं तो अर्निंग नहीं कर पा रहा है, मैं तो अर्निंग नहीं कर पा रही, ये तो कर रहा है। बहुत बार वो सेल्फ डाउट आएगा, बट डेफिनेटली यार रिजल्ट का जो एफर्ट होता है उनका रिजल्ट बेकार नहीं जाता, उनका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। कट इट। अब मैं आपको ना बहुत बेसिक कैलकुलेशन दे देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन क्या होगी, मैं आपको एक सेकंड नोटपैड ओपन कर देता हूँ, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है। ठीक है, 1 सेकंड में नोटपैड ओपन कर, 1 सेकंड। यस, मैं इसको थोड़ा सा, सेकंड, फॉन्ट को मैं थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। यस, अब आपको फर्स्ट मंथ मतलब 30 डेज मैंने बोला, ठीक है, बेसिक सी कैलकुलेशन दे रहा हूँ। 30 डेज में आपको मैंने कितना बोला, 50 लीड जनरेट करनी है। 50 लीड के बाद अगर आपका फर्स्ट सेल नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 लीड जनरेट कर लेना। ठीक है, आपको लीड्स कितनी जनरेट करनी है, 50 लीड्स। ठीक है, कितने, 30 डेज में। अगर हम इसको डिवाइड कर ले, ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो आपको 2 लीड जनरेट करनी है पर डे में। ठीक
है, फिर भी आपका 60 लीड्स हो जाएगा, बट राउंड फिगर हम लेके चल के 2 लीड आपको एक दिन में जनरेट करनी है। अब 2 लीड लाना एक दिन में कोई मुश्किल काम नहीं है। एक मतलब बोलते ना, एक भाई जिसको बिजनेस स्टार्ट करे हुए एक हफ्ता भी हुआ है ना, वो भी करना सीख सकता है। ओके, 2 लीड लाते हैं। ओके, एक दिन में 30 दिन में हमारे पास 60 लीड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप उन 60 लोगों से डेली कनेक्ट कर रहे हो, 60 लोगों से डेली कनेक्ट करने का मतलब है कि 2 लोगों से डेली कनेक्ट कर रहे हो, तो महीने में वो 60 लोग हो जाते हैं। ओके, तो आप कितने नेक्स्ट लेवल के इंसान बन चुके होंगे, आपका वहां से फर्स्ट सेल भी आ चुका होगा, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जो लाइक वो है क्या बोलते हैं, 60 लोग 60 लीड्स आप ला रहे हो, ठीक है, फर्स्ट मंथ में, ठीक है। अब ये 2 लीड्स कहाँ कहाँ से आप ला सकते हो, ठीक है, वो ऑलरेडी और हमने खैर लीड जनरेशन वाले पार्ट में बताया है, आपने देखी भी होगी ट्रेनिंग, ग्रुप प्रमोशन वगैरह। सो ग्रुप प्रमोशन से तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप करोगे ना अच्छे से, आपको 2 या 10 लीड्स भी आप पर डे की ला सकते हो। ओके, सिंपल सा समझाने का ये मतलब है। और मैं मान के चलो कि आप पहले महीने में सिर्फ 2 सेल भी करते हो, फर्स्ट मंथ में 2 सेल्स भी करते हो, या फर्स्ट सेल भी करते हो, सिर्फ 2 सेल करते हो, चलो ठीक है, बिकॉज 60 लीड्स आपने जनरेट करी, 2 सेल्स भी करी। तो यार आपने किसी भी पैकेज से स्टार्ट करा, यू हैव रिकवर, आपने अपने पैसे कर लिए रिकवर, ठीक है। इतनी सिंपल कैलकुलेशन है। अब मैंने इसको ब्रेक करके आपको बताया कि 60 लीड्स लानी है, 60 लीड्स मतलब 2 लीड एक दिन में। अब ये ना इतनी बर्डन नहीं लगेगा कि 60 लोगों से बात करना है, 2 लोगों से एक दिन में तो बात करी जा सकती है ना। कैलकुलेशन दिखाने का यही मतलब है कि भाई इतना बर्डन नहीं लेना, 2 लोगों से भी अगर एक दिन में बात कर रहे हो, इजीली फर्स्ट मंथ में सेल लाई जा सकती है, समझे। स्माइल कर दो अब यार, ऐसे 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 मत बैठो यार ठीक है, दैट इज द थिंग यार। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं अपना पीपीटी दोबारा शेयर करता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, आप अगर सीखते हो प्रॉपर उन एक महीने में ना, आप बहुत सारी चीजें अपना फर्स्ट सेल से भी ज्यादा कर सकते हो। ओके, दैट इज द थिंग। क्वेश्चन एंड आंसर वाला पार्ट है अभी ये। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा चीजें। 1 घंटा बोला था, 1 घंटे के अंदर हमने सबमिट कर दिया प्रॉपर कंप्लीट, ठीक है। यही कुछ चीजें है। मेरे पर डेली 20 से 40 लीड आती है, तो क्या मुझे उनसे कॉल पर कनेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देता हूँ, भूषण उन सबसे तो नहीं कर सकते, बिकॉज यार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा अगर 20 से 40 लीड्स आ रही है। सॉल्यूशन ये है कि क्वालिफाइड लीड से बात करो। क्वालिफाइड लीड कैसे होती है, अब मैं आपको थोड़ा सा अपना क्लोजिंग वाले सेशन का भी बता देता हूँ। वो ये, आप ऑल्दो जब देखो क्लोजिंग वाला सेशन तो उसके अंदर डिटेल में बताया क्वालिफाई कैसे करना है लीड को। देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड मैन मनी। ओके, मैं यस मनी, मैं भूल रहा हूँ यार, मैन फॉर्मूला होता है, ठीक है। I think money, authority, and need. अथॉरिटी, यस, हाँ हाँ, सॉरी, Authority थैंक and यू need. थैंक यू थैंक यू, यस। मनी, अथॉरिटी, नीड, ये एक फॉर्मूला होता है लोगों को क्वालिफाई करने का। मनी से क्या होता है कि उसके पास ऑब्वियसली पैसे होने चाहिए। अब अगर मैं एक ऐसे पर्सन के ऊपर टाइम दे रहा हूँ जो यार 14 साल का है, कोई पॉइंट ही नहीं बनता उसमें, मैं ऐसे बंदों को पहले ही पूछ लेता हूँ कि भाई इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट है, कर सकते हो तो आगे बात करेंगे, ठीक है। पैसे से हमने उसे क्वालिफाई कर लिया। सेकंड, जो अथॉरिटी, अब ऑब्वियसली यार अगर कोई 17 साल का है, कोई 14 साल का आ रहा है, तो मैं उसके बाद अथॉरिटी नहीं है। अब मैं उसको समझाऊंगा, बट यार पूछेगा तो वो अपने पापा से, अपनी मम्मी से ना, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है उसको बिजनेस इतना, तो वहां पे उतना ही टाइम तो जितना रिक्वायर्ड है। मैं ये नहीं बोल रहा उसको कॉल में मत लो या उसको इग्नोर करो। ओके, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उसको ज्यादा टाइम मत दो। दैट इज द सेकंड थिंग, अथॉरिटी। एंड तीसरी चीज, नीड। अब नीड जो होती है वो क्रिएट करी जाती है, ठीक है। वो आपको डिटेल में जानने को मिलेगा क्लोजिंग वाले सेशन में, आपके पोर्टल में ही यार, आप चाहे किसी भी पैकेज से आपको पोर्टल में मिलेगी 2 ट्रेनिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय मोहित रावत के नाम से, और दूसरी भी उसी नाम से है, लेकिन वो क्लोजिंग के ऊपर है। ओके, पोर्टल में आपको मिल जाएगी, उसके ऊपर मैंने डिटेल में बता रखा है कि लोगों को कैसे क्वालिफाई करना होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं। ओके, आप बोलते हैं ना कि यार लोग कॉल में आते हैं बट वो आखिरी में बोल देते कि पैसे नहीं है। ओके, ठीक है, आखिरी में लाइक आखिरी में आके आपको मना कर देते हैं, तो उनसे पहले पहले ही हम उन्हें फिल्टर कर लेंगे ना कि अच्छा अभी आपका बजट का इशू तो नहीं है ना, आप मतलब इतना तो इन्वेस्ट कर सकते हो ना, ठीक है। वो कुछ क्लोजिंग क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पहले ही, मतलब फिल्टर करने होते हैं। तो आप डिटेल में देखोगे तो आपको पता चलेगा। बट आज का सेशन हमारा फर्स्ट सेल्स के ऊपर था। ओके, गॉट इट। यस विकास ब्रदर, आज देयर कंटेंट क्रिएशन क्या करें सर। ओके, ठीक है, अपन कुछ Yeah, क्वेश्चंस ले लेते हैं। I'm here, man. I'm here. Yeah. So Mohit, the training was good. काफी अच्छा था. I hope guys आपने enjoy किया होगा. How's the session?
Want to know from you guys, how's the session? ऐसे कह दो, अगर सही लगे चैट में लिख दो। Perfect. Yeah, amazing, mind blowing, बहुत अच्छा, आग लगा दिया। ग्रेट। जहाँ मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी ना यार, 50 लीड के पहले आप सेल के बारे में सोचो ही नहीं कि आपकी फर्स्ट सेल निकल जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत पावरफुल लाइन है अगर इसको आप समझ जाओगे। होता क्या है ना, एज अ बिगनर, हम सब बिगनर थे, तो होता क्या, आप इस चीज को रिलेट कर पाओगे जो मोहित ने बताया। हमारे पास पहला लीड आता है ना, तो हमें चीजों की क्लैरिटी नहीं होती और हम सोचते हैं कि वो जो लीड आया वही सेल क्लोज हो जाएगा, और हम कहीं ना कहीं इमेजिनेशन करने लग जाते हैं, यार मेरे अकाउंट में 3,000 रुपए आ रहे हैं या 1,500 रुपए, जो भी 1,700 रुपए आ रहे हैं। फर्स्ट लीड, एक बंदे ने पूछा, सर आप करते क्या हो भाई, आप करते क्या हो, बस उधर ही मन में लड्डू फूटना स्टार्ट हो जाता है, खुशी आ जाती है, एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि ये तो क्लोज हुआ बस। ये तो इतना आसान था, पहला बंदा मैंने एक पोस्ट किया, 10 लोगों ने पूछ लिया भाई करते क्या हो। ठीक है, तो वो जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, एक्चुअली वही आपको डिमोटिवेट करती है। प्रोसेस को फॉलो करो, चीजें आसान है, लेकिन हाँ आप क्या होता है ना, तुरंत रिजल्ट आती है, तुरंत जब नए नए आप कुछ भी डालोगे तो 10 लोग आपसे पूछेंगे भाई कर क्या रहे हो, क्या डाल रहे हो। ठीक है, वो आपकी इंक्वायरी होती है, जैसे मोहित ने बताया है, बहुत अच्छे से बताया, इंक्वायरी लीड होती है, ठीक है, प्रोस्पेक्ट होते हैं, तो ये सारे पार्ट आपको समझना है। आप कहीं ना कहीं कहाँ जहाँ पे इंक्वायरी आती है वहीं पे आप खुश हो जाते हो, और फर्स्ट स्टेप को लास्ट स्टेप से जोड़ देते हो कि भाई ये क्लोज हो गया है। ठीक है, और जब वो क्लोज नहीं होता है तो होता है आपको डिमोटिवेशन, आपको होता है ब्रेकडाउन, यार ये क्लोज नहीं हो रहा। अब मान लो ऐसे 4 से 5 लोग आ जाएंगे, तो आप तो बस बिजनेस खत्म, बिजनेस चलता नहीं, बिजनेस बेकार है। तो ये 4-5 लोग कुछ नहीं है, तो 50 लोग कम से कम लेके आओ, 50 लोगों से आप बात करोगे ना, 50 लोग लेके आओ, आप 10 से बात कर लोगे ना, और 10 रिजेक्शन मिल जाएगी ओवर द कॉल, आप काफी स्ट्रांग बन चुके होगे, आपको समझ में आ चुका होगा कि लोगों का माइंडसेट कैसा होता है। अक्सर हम भी होते हैं, दुकान पे जाते हैं, भाई ये कैसा लग रहा है, मतलब इसकी प्राइस क्या है। अब मान लो हम प्राइस पूछ रहे हैं, जो सेल्समैन वो एकदम एक्साइटेड हो जाएगा, बंदा खरीदेगा ही, आपको भी ऑकवर्ड लगेगा और पीछे पड़ गया। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी मे भी हमारा माइंडसेट बाद में लेने का है, बट कहीं ना कहीं अगर हमने इंक्वायरी किया तो ये हो सकता है कि आज तो कल ये खरीदेगा, बट दैट डजंट मीन कि आज ही खरीदेगा। एंड वी नीड टू कीप एन एक्सपेक्टेशन, कि ये खरीदेगा, मैं खुश हो जाऊं, फिर नहीं खरीदेगा तो फिर मैं आसमान में था, फिर वहीं से धमाक धपाक से नीचे गिरा। ठीक है, वो वाली चीज नहीं करनी है। आई होप यू अंडरस्टूड। परफेक्ट, बाकी बहुत अच्छे से हर चीज समझाया गया है, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको हर चीज समझाए गए हैं। आई होप उसको अगर आप फॉलो करोगे, डेफिनेटली फॉर श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा। बट द वन थिंग, द वन फैक्टर इज अपॉन यू कि वेदर यू आर गोइंग टू फॉलो दैट थिंग्स और नॉट। इफ यू आर गोइंग टू फॉलो, आई कैन बेट, मोहित ने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप इसको फॉलो करोगे, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सो थोड़ा टाइम निकालो, चीजों को अंडरस्टैंड करो, इम्प्लीमेंट करो। ओके, दैट्स ऑल मोहित, सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। ओके, ओके, श्योर। परफेक्ट, सो ठीक है गाइस, गाइस, आप ना क्वेश्चन अभी लिख सकते हो अपना चैट बॉक्स में। या परफेक्ट, जस्ट राइट योर क्वेश्चन, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है। आप दोबारा लिख दो, जो ऊपर चले गए हैं ना, वो दिख रही है। ओके, ठीक प्रेजेंटेशन, है। ओके मोहित, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद लीड्स अक्सर रिप्लाई नहीं करते हैं, तो उनसे कैसे बात किया जाए? यहाँ पे देखो, अब आप देखो, अब मैं आपको रेशियो दे देता हूँ। 50% लोग नहीं करेंगे, मुझे भी नहीं करते। ओके, ये तो उसके हो गया कि आपको जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 100 के 100 लोग आपको रिप्लाई करेंगे, नहीं होने वाला। ठीक है, अब रेशियो को इम्प्रूव कैसे करा जा सकता है? आपके पर्सनल ब्रांड के थ्रू। समझाता हूँ। अगर आपको आज कॉल आता है राहुल भटनागर या विवेक बिंद्रा सर का, आप आंसर करोगे? करोगे। अगर आपको एक रैंडम कॉल आता है, आपको पता भी नहीं कि कौन है, आपका टाइम वेस्ट करने वाला है, हो सकता है आप करो, हो सकता है आप ना भी करो, हो सकता है आप मैसेज को इग्नोर करो, हो सकता है आप कॉल को इग्नोर करो। इट्स ऑल अबाउट कि उस पर्सन की कितनी अथॉरिटी है, वो आपको किस नजर पे रखता है। समझे? तो अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी होती है। मैंने बताया था ना, लीड वाले उसमें या इंक्वायरी वाले उसमें, कि वैल्यूएबल कंटेंट डालो। अथॉरिटी सोशल मीडिया में आपके वैल्यूएबल कंटेंट के थ्रू ही बिल्डअप होती है। समझे? लोग, मैंने बताया था कि क्या लोग हमेशा उन लोगों से संग कनेक्ट होना पसंद करते हैं जो हमसे नॉलेज पे ऊपर होते हैं, या मतलब नॉलेज पे ऊपर होते हैं। ओके, तो दिखाओ ना, वो बन के दिखाओ सोशल मीडिया में, तो अपने पर्सनल ब्रांड में काम करो। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो इस तब आपका वहां से जो रेशियो वो बढ़ेगा। बट स्टिल 50-60% लोग कॉल आंसर करेंगे, बाकी के लोग इग्नोर करेंगे, बाकी के लोग स्टेटस देखेंगे, आपको खुद मैसेज करेंगे कि भाई अब बताओ करते क्या हो। सिंपल, दैट इज द थिंग। एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली ग्रेट। तो ये माइंडसेट बना लो यार कि हर कोई नहीं, कभी भी हर कोई रिप्लाई नहीं करता है यार।
किसी भी बिजनेस उठा लो कि यार जब वो अपना प्रमोशन करते हैं ना, मार्केटिंग करते हैं, तो हजारों लोग देखते हैं, तो सबके सब आगे परचेस थोड़ी ना करते हैं, एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर। और इसमें हमारा बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग पार्ट ये है कि हम उनसे बहुत क्लोज कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू व्हाट्सएप या फिर थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म, एंड हम बहुत क्लोजली फॉलो अप कर सकते हैं। हमारे पास ये एडवांटेज है, हम अपनी स्टोरी लगा रहे हैं, व्हाट्सएप में स्टोरी लगा रहे हैं, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि वो आपके व्हाट्सएप स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, एंड आप ब्रॉडकास्ट भी करते हो। सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, आज नहीं तो कल वो क्लोज होंगे। ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद बात क्या करनी चाहिए, मतलब कैसे बात करना होता है? ओके, ठीक है। यहाँ पे ना देखो कुछ 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहली चीज तो ये वो करो कि बंदे ने रियल में प्रेजेंटेशन देखा है नहीं देखा। अभी कैसे पता चलेगा? मैं क्या करता हूँ, मैं उससे ना 3 तरीके के कोर्स पूछ लेता हूँ कि भाई ठीक है, अगर आपने प्रेजेंटेशन देखा भी होगा और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो आपको एटलीस्ट उनमें 3 तरीके के कोर्स पता चले होंगे जो आपको उस वीडियो में बताए गए हैं। अगर आप उस बंदा वो बंदा आपको बता पाता है तो उसने देखा है वीडियो को, ठीक है। बट अगर वो वही नहीं बता पाता तो मतलब है कि उसने वीडियो को नहीं देखा है। वो जस्ट आपके संग, जैसे अभी कई बार होता ही है ना, 15 मिनट की वीडियो कोई लेट से जो प्रेजेंटेशन वीडियो है, बंदे का 2 मिनट में रिप्लाई आ जाता है, भाई मैंने देख ली। ओके, तो मुझे साफ पता चलता था नहीं देखी। तो कैसे आपको पता लगेगा बंदे ने वीडियो देखा नहीं देखा? आपको सबसे पहले उसे 3 तरह के कोर्स के नाम पूछने हैं। अब अगर उसने देखा होगा तो उसको आप आगे कैसे एक्सप्लेन करना है। जैसे मैं आपको पहले का प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं प्रॉपर ऑडियो में आंसर करता हूँ, बट आपको तो कॉल में करना है ना। पहले मैं क्या बताता था, देखो ब्रदर, बिजनेस करने के 2 तरीके होते हैं। आप एक जॉब करते हो, एक मतलब सॉरी, पैसा कमाने के 2 तरीके होते हैं। आप एक जॉब करते हो या आप एक बिजनेस करते हो। ओके, ठीक है। लेट के मत देखो यार, संजय या जो भी लोग देख के लेट के देख रहे, उठ जाओ। ठीक है, मुझे वरना नींद आती है आपको देख के। ठीक है, जॉब होता है या बिजनेस होता है पैसा देखने में, पैसा कमाने का। जॉब जाते हो हम, जो नॉर्मल होता है कि हम पहले स्टडी करते हैं, मतलब 10 साल 12 साल हम स्कूल में देते, उसके बाद 3-4 साल हम कॉलेज करते, उसके बाद हमारी एक जॉब लगती है 20 साल 25 साल की। लेकिन और उसके बाद हमारी स्किल्स के अकॉर्डिंग या हमारी डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे को पैसा आता है या हमारी जॉब लगती है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि जब आप खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, ओके, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाना, सेल करना, टीम हायर करना, ऑफिस लेना, ये सब एक बिजनेस का प्रोसेस होता है, जो एक बहुत बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है, हर कोई इसकी तरफ नहीं जा सकता, इसीलिए ज्यादातर लोग बिजनेस को प्रेफर करते हैं। तो ये 2 तरीके हैं पैसा कमाने के। ओके, अब यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग में आप आ जाओ फटाफट। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि आपको यहाँ पे करना क्या होता है, ना तो आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को सेल करना होता है। और जो आपको लोग आते हैं वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं। ठीक है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और आपको थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को सेल करना होता है। जो मैंने बताया ना, प्रोडक्ट बनाना, टीम हायर करना, ऑफिस लेना, वो सब आपको यहाँ पे झंझट नहीं होता। एफिलिएट मार्केटिंग इतना आसान है, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो। अब एफिलिएट मार्केटिंग में देखो, आप 2 कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं जो सेल कर सकते हो। पहला, अभी आपको शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जब आप 10 लोगों से बात कर लोगे, आपके मतलब चिपक जाएगा ये आपकी जुबान से। ठीक है, फंडा। आपको क्लोजिंग वाले सेशन में मैंने प्रॉपर ये भी एक्सप्लेन कर रखा है, बट स्टिल मैं समझाता हूँ। तो एफिलिएट मार्केटिंग में 2 कैटेगरी प्रोडक्ट होते हैं, फिजिकल एंड डिजिटल। फिजिकल में क्या होता है, जैसे आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, बहुत सारी वेबसाइट है, वो सारे फिजिकल प्रोडक्ट को सेल करती है। लेकिन वहां पे जो प्रोडक्ट का मतलब जो कमीशन होता है वो होता है 5%, 2%, 3%। ओके, अब ऑब्वियसली यार, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो, 5-2% या 3% के लिए स्टार्ट नहीं कर रहे हो। ओके, दूसरी कैटेगरी की होती है डिजिटल प्रोडक्ट, कोर्सेज। ठीक है, कोर्सेज जो होता है, कोर्सेज में बहुत ज्यादा आपको कमीशन मिलता है, मतलब 70%, 80%, 75% तक आपको कमीशन मिलता है। इतना ज्यादा क्यों मिलता है वो भी क्लियर होना चाहिए, बिकॉज हो सकता है लोग आपसे पूछ ले। बिकॉज जो फिजिकल होता है वो बार बार बनता है। अगर मुझे 10 किताब लेट से सेल करनी है, तो मुझे 10 बार इसको बनाना पड़ेगा। ओके, बट अगर मुझे 10 बार कोर्स सेल करना है, तो मुझे 10 बार तो नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे तो सिर्फ एक ही बार बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन तो बार बार सेल हो सकता है ना, इसीलिए उसमें कॉस्ट नहीं लगती, इसीलिए उसमें ज्यादा कमीशन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब आप कौन सा करना पसंद करोगे, आप पूछ सकते हो, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई बंदा बात सुन रहा है। ठीक है, आपको कौन सा करना पसंद करोगे, जहाँ पे 2-3% आ रहा है, जहाँ पे 70-80% आ रहा है? ऑब्वियसली 70-80%। ओके, तो यहीं पे आपने वीडियो में देखा होगा 3 तरीके के कोर्स है, लीडजाक लाइट, लीडजाक स्टैंडर्ड, लीडजाक प्रो। उनका ये प्राइस है। ओके, आपको इनके अंदर ये सिखाया जाता है, ठीक है, कैसे लीड जनरेट करे, कैसे सोशल मीडिया वगैरह में मार्केटिंग करे, कैसे कंटेंट क्रिएशन वगैरह करे, कैसे डिजिटल मार्केटिंग करे, वो सब आपको स्किल यहाँ पे सिखाई जाती है। ओके, अब आपको यहाँ पे करना क्या, देखो 2 तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। पहला तो ये है कि आप इनको कहीं और मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे आपने अगर मान लो कोई एक स्किल सीख लिया, आपने फेसबुक ऐड सीख लिया, ओके, तो या तो आप अपना फेसबुक ऐड चलाना स्टार्ट कर सकते हो, आप उसको मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हो। दूसरा ऑप्शन जिससे आप इजीली अर्न कर सकते हो, वो ये कि आपको लीड्स के राइट देता है
कि आप इनके प्रोडक्ट को एफिलिएट कर सकते हो या इनके कोर्स को एफिलिएट कर सकते हो। आपने एक बार परचेस करा कोई भी पैकेज, लेकिन आप उसको लाइफ टाइम के लिए एफिलिएट या लाइफ टाइम के लिए सेल कर सकते हो। ओके, लाइफ टाइम के लिए आप उसको सेल कर सकते हो, समझे? मतलब एक बार परचेस करा, एक बार इन्वेस्टमेंट करी, वो भी लर्निंग के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, बिजनेस फ्री है, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। ओके, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट करा, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे अर्निंग होता है। अब यहाँ पे जो कमीशन आपको कितना मिलता है, मैंने बताया 70%, तो उसको कमीशन समझा दो। लाइट में 1700 मिलता है, स्टैंडर्ड में 3000 मिलता है, प्रो में आपको 7300 रुपीज का मिलता है। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन देना, कि लेट से लोग ना, देखो छोटी छोटी चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? कैलकुलेशन कैसे? वो ऐसे कि अगर आप लेट से भी आप फर्स्ट सेल के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो लाइट भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है? प्रो अभी शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट लाइट और स्टैंडर्ड इज ओके। अगर आप स्टैंडर्ड वाली को 5 सेल कर देते हो फर्स्ट मंथ में, 5 सेल छोड़ देते हैं यार, बहुत ज्यादा लगेगा, हो सकता है उसको पहली बार सुनकर, 3 सेल कर देते हो, तो आप पहले 3 सेल में ही आप 3000 की, सॉरी 9000 की अर्निंग आप कर लेते हो, बिकॉज पर सेल आपको 3000 आ रहा है। वो कैलकुलेशन देना, बंदे के सामने ना फिगर क्लियर होनी चाहिए कि भाई मैं अगर इतनी सेल करूंगा तो मुझे इतना पैसा आएगा। वो कैलकुलेशन उसे क्लियर होनी चाहिए। ओके, अगर उसे आपने बोल दिया इतना कमीशन आएगा, भाई मैं कितना कमा सकता हूँ उसका, मतलब वो अच्छे से चीजें क्लियर नहीं हो पाती। तो अगर आपने उसको ये दिखा दिया ना कि अगर तू इतनी सेल करेगा तेरे को इतना पैसा आएगा, वहां से फिर उसको बिजनेस समझ में आ जाता है। और ये मेरा बिजनेस समझाने का तरीका है। ओके, ये इस तरीके से मैं उसको बिजनेस समझाता हूँ, समझे? और फिर इसके बाद डेफिनेटली बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे कि यार अभी पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहे, ऐसा वैसा, वो सब आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली ट्रेनिंग में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पूरे 25 ऑब्जेक्शन कवर करे थे, आई थिंक, मेरे को ध्यान है उसमें। आपको पता भी नहीं होंगे इतने ऑब्जेक्शन जितने उस ट्रेनिंग में कवर कर रखी है। ठीक है, तो देखना जरूर उस ट्रेनिंग को। ये मेरा समझाने का तरीका है, जब बंदा बिजनेस प्रेजेंटेशन वीडियो को देख लेता है। ये अभी मैंने इसको समझाने में 5 मिनट या 7 मिनट लिए, बट जब ये आप रिकॉल में समझाओगे ना, 10-20 लोगों को समझा चुके होंगे, इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स फॉर यू एज वेल। आपके लिए भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, परफेक्ट वंडरफुल। आई होप यस। गाइस यू आर नोटिंग एवरीथिंग, कैसे आपको कॉल में बात करना है। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, सिंपल सा है। उनको आपको ये बताना है कि भाई देखो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, एज अ बिगनर आप स्टार्ट करो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन से, बट डाउन द लाइन आपकी एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप टू द पॉइंट बात करने लगोगे। क्यों? क्योंकि डाउन द लाइन आपकी ऑथोरिटी बिल्ड हो जाएगी। देन आपको अपने बातों के थ्रू उसका ट्रस्ट गेन करने की जरूरत नहीं होगी। आपका जो पर्सनल ब्रांडिंग होगा, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, द वे यू नो कम्युनिकेट इन व्हाट्सएप, वो सारी चीज से ना बंदा ऑटोमेटिक कन्विंस हो जाएगा। आपको उस पॉइंट पे उनको ट्रस्ट जीतने की जरूरत नहीं होगी। बट एज अ बिगनर यू नीड टू प्रोवाइड देम ट्रस्ट। देखो, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करना है और उनको ट्रस्ट लेना है यार कि भाई वो सही जगह पैसे लगा रहे हैं। ठीक है। और जो मोहित ने एग्जांपल बताया कि आपको एक बार परचेस करना है एंड यू कैन सेल इट फ्रॉम मल्टीपल टाइम्स, इज वेरी 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 इजी एग्जांपल। यू कैन गिव इट लाइक, मान लो अगर आप कोई दुकान खोलते हो राशन का, कोई भी दुकान खोल लो यार, आपने बल्क में सामान मंगाया और वो आप सामान को बेच रहे हो। मान लो आपने 10 में सामान मंगाया, आपने 12 में बेचा, तो आपका प्रॉफिट हुआ 2 रुपए। बट अगर मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दूं कि आप सामान एक ही बार खरीदो, 10 रुपए की सामान एक ही बार खरीद लो और उसको जितने मर्जी बार उतनी बार बेच लो, कैसा रहेगा? तो ये एग्जांपल समझाओ कि यहाँ पे ये वाली अफिलिएट मार्केटिंग में चीज होती है। आप एक बार इन्वेस्ट किए, आपने सीखने पे इन्वेस्ट किया, और मान लो कि आपने प्रोडक्ट में किया, अब उसको आप मल्टीपल टाइम्स बेच लो, जितना आपको बेचना है, 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार, जितना आप बेचोगे उतना आपका अर्निंग आएगा। यहाँ मल्टीपल आपको इनकम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी एग्जाम्पल है। ओके, और बाकी मोहित ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसको फॉलो करो आप, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। मोहित, एक और क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे, ये है इसका एग्जाम आंसर दो आप। सो द क्वेश्चन इज, भाई आज लीड ने स्टार्ट करने से भाई क्या लिखे हो भाई, आज लीड ने स्टार्ट करने से रेडी हो गया था, लेकिन पेमेंट करने के लिए बोला तो ब्लॉक कर दिया। ओके, दैट्स द पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा आंसर है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, मतलब सिंपल सी चीज पहले समझो, फिर इसका एक आंसर भी मैं आपको दूंगा। लीड ने आपको, देखो लोग, हम हमारा कई बार हम इंडियन के संग क्या है ना, हमें लोगों को मुंह पे मना करने के लिए वो होते हैं पीछे कि यार इसको मुंह पे मना करूंगा तो बुरा लगेगा, तो वो आपको मुंह पे मना नहीं कर पाए। उसने आपको बोला कि, और ये कई बार ना, ये आपने भी करा होगा, जो लोग आपको प्रोडक्ट बेचने आए होंगे, आपने कई बार करा होगा कि भैया आज नहीं, हम कल लेंगे, भाई कल नहीं परसों हम पक्का लेंगे। ठीक है, तो हमने मना नहीं कर सकते, हमें लेंगे नहीं, हम कभी विजिट भी नहीं करेंगे उस जगह में, तो हम मना नहीं कर पाते। सेम आपके संग हुआ होगा ब्रदर या सिस्टर जो भी है, ठीक है, कि
आपने उस पर्सन को क्वालिफाई नहीं करा होगा, ठीक है, आपने उससे प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं पूछे होंगे, उसने आपको मुंह पे बोल दिया होगा, मतलब मुंह पे ये जरूर बोल दिया होगा कि मैं भी पेमेंट कर रहा, बट आपको सिंपल सा नो बोलना चाह रहा होगा या चाह रही होगी, और इसने उसने आपको ब्लॉक कर दिया। ओके, ये है, समझे? तो इसका पहले क्वालिफाई करो बंदे को, उससे प्रॉपर क्वेश्चंस वगैरह पूछो, ठीक है। मैं पहले ही पूछ लेता हूँ कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट है, कर सकते हैं ना, मतलब। और फिर अगर उसको ये क्वेश्चन आता है ना कि यार फ्री में, फिर वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला पार्ट है कि यार फ्री में तो कुछ भी स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। अगर आपको चाय का ठेला लगाना है तो भाई वो भी 25,000 रुपए का लगता है। अपने मतलब लोगों की बातें सुनो, पुलिस वाले की बातें सुनो, एक छोटू को चाय में रखो, वो सब फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है। लेकिन क्वालिफाई करो पहले, ठीक है। मेरे को ये इशू बहुत कम आता है कि यार बंदा पेमेंट, मतलब पेमेंट के टाइम पे ब्लॉक कर दिया, मैं पहले ही पूछ लेता हूँ, ठीक है, कि भाई कर सकते हो अभी? ओके, मैं उससे इवन ये भी पूछ लेता हूँ कि भाई ऐसा तो नहीं कि आप आखिरी में जाके मुझे मना कर रहे हो कि भाई मेरे संग अभी ये इशू है, मुझे 10 लोगों से परमिशन लेनी है। मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ कि भाई ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि आप मुझे लास्ट में मना कर रहे हो, ठीक है। Absolutely, and तो that's the बहुत, authority, मोहित, that's the authority आपको बनाना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली ये चीज पहले क्लियर कर लो कि अगर ऐसा है तो आप मुझे पहले बता दो, ओके, ताकि एटलीस्ट आपका एक्सपेक्टेशन थोड़ा डाउन तो रहे, ओके, और आपको बंदा ब्लॉक ना करे, बिकॉज ब्लॉक नहीं करेगा तो कल ना कल तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सेशन में पता चलेगा डिटेल में, लेकिन वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, आप भी के लिए मैंने आपको ये सारे बताए। ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हो कि बाद में ऐसा तो नहीं कि आप मुझे मना करोगे, या ऐसा कि आप मेरे पास पैसे नहीं है मुझे अरेंज करने, ऐसा कुछ है तो पहले बता दो, ठीक है। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस बंदे के ऊपर कितना टाइम देना है। अब किसी बंदे के पास पैसे नहीं है, वो भाई 10 लाख रुपए का लोन लेके बैठा है, आप उसको बिजनेस समझा रहे हो, तो क्या करेगा? वो नहीं करेगा यार, समझे? तो ये चीजें क्वेश्चंस वगैरह पूछना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है प्रोस्पेक्ट को या पर्सन को क्वालिफाई करने में कि किसके ऊपर टाइम देना है। Absolutely, perfect, perfect, perfect. So यार ये चीज ना मोहित ने बताया कि हम we everyone do like this। आप खुद सोचो ना, अगर आप किसी शॉप में जाते हो, अक्सर होता है हम शॉप में जाते हैं एंड हमें बस प्राइस जानना है यार उस चीज का, कि उस चीज का क्या प्राइस है, क्या वैल्यू है, बट वो कस्टमर दुकानदार हमारे पीछे लग जाता है। सर आप बताइए ना कितना कम कर दें हम, आप जो दाम बोलोगे हम कर देंगे, बट वी नो कि हमें लेना ही नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, किसी का कॉल आ गया, या हम बोलते हैं भाई हम कल आते हैं, हम कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देके वहां से निकलते हैं, बिकॉज राइट नो हमें वो लेना ही नहीं है, ना ही हमारी नीड मैच कर रही है, यू नो। अगर मान लो आपको कोई कॉल करता है क्रेडिट कार्ड वाला या बैंक से, वो आपके पीछे लग गया, आपने 2 मिनट बात कर लिया, तो आप उसको नहीं बोल पाते। हम लोग, यू नो, वी आर वेरी पोलाइट काइंड ऑफ पीपल इंडियंस, यू नो, वी कांट से नो। सो वी ट्राई टू, यू नो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नो बोलने के लिए ना, यू नीड अ कॉन्फिडेंस, यू नो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए नो बोलने के लिए, इवन टू से नो। तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता लोगों के अंदर कि हम नो बोल दें सामने, तो वो चीजों को डिले करते हैं या फिर पोस्टपोन करते हैं कि यार अच्छा हाँ हाँ मैं कर दूंगा, ताकि हाँ एटलीस्ट वो उस जो सिनेरियो, छोटा सा सिनेरियो क्रिएट हुआ है, वहां पे बच जाए। वो आपको बोल देंगे हाँ हाँ मैं कर लूंगा, पेमेंट कर लूंगा, एंड फिर जब वहां से निकलते हैं, फिर आपको जैसे उनको मौका मिलता है आपके कम्युनिकेशन से बाहर हुए, ब्लॉक कर देते हैं। हम भी वही करते हैं ना भाई, इसको हम बोले भाई कल करेंगे, बाद में करेंगे, और दोबारा कॉल आएगा तो हम ब्लॉक कर देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट। अभी तक आपने ट्रस्ट जीता ही नहीं सामने वाले का, और आप उसको क्लोज करने के पीछे बैठ गए हो, ठीक है। तो एकदम ट्रस्ट जीत लो, उससे बात करो उसके साथ। जो मोहित ने बताया कि डायरेक्ट पूछ लो यार ब्रदर कोई डाउट तो नहीं है, आप अभी पे कर सकते हो 4,130। उससे एकदम मतलब जितने पॉइंट है ना उससे पहले क्लियर कर लो, कि बाद में ऐसा तो नहीं होगा कि आप, यू नो, अभी आप बोल रहे हो पे कर रहा हूँ, बाद में आप टाइम खराब करके बोलोगे नहीं पे पैसे नहीं है, ये नहीं है। आपके पास पैसे हैं, एवरीथिंग इज रेडी, देन ओनली आई कैन गाइड यू टू स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी है अपनी, कि यार भाई मेरी अथॉरिटी है, मेरी टाइम इंपॉर्टेंट है, आप बात कर रहे हो, तो आई एम, यू नो, आई एम नॉट हेयर फॉर यू, यू आर हेयर, राइट। मैं यहाँ पे, यू नो, मैं अपने फायदे के लिए नहीं हूँ, यू आर हेयर फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट हेयर फॉर मी, कि आप आओगे मेरा फायदा हो जाएगा, नहीं, उसको ये चीज कभी बिलीव करवाना ही नहीं है, ठीक है। उसको हल्का सा भी हिंट नहीं चाहिए, मिलना चाहिए कि यू आर गेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, ओके। ऑल्दो ही नो बैक ऑफ द माइंड कि प्रॉफिट मिल रहा है, इसको कमीशन मिल रहा है, बट वो कभी भी सामने बात नहीं होना चाहिए कि, यू नो, यू आर गेटिंग द प्रॉफिट। योर फोकस ऑलवेज शुड बी, यू नो, कि आपको क्या मिल रहा है, उस आपका फोकस ये होना चाहिए, आपकी बातों में, कम्युनिकेशन में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि भाई आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप ज्वाइन करोगे। आप, मोहित ने कैलकुलेशन बताया बहुत अच्छा, कि आपने 4 सेल किया, 5 सेल किया, मान लो आप लाइक स्टैंडर्ड से स्टार्ट करो, तो 15,000 यू आर अर्निंग, 10,000 यू आर अर्निंग। तो ये फिगर जब आता है दिमाग में, तो दिमाग हिट करता है कि भाई 10,000 कमा लूंगा, 5 से 5 सेल निकालना है, 3 ही सेल निकालना है। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज हाउ वी विल टॉक विद पीपल। स्टार्टिंग में मैं आपको एक, यू नो, हेल्प करना चाहूंगा, जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ। जो भी पॉइंट है ना, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो ओवर द कॉल, जस्ट मेक अ नोट कि पहले मुझे रिलेशन बिल्ड करना है। फर्स्ट पॉइंट, आई नीड टू बिल्ड द रिलेशन। सेकंड पॉइंट, मैं उससे पूछूंगा कि आपने कौन सा, ये 3 वीडियोस के नाम बताओ, सॉरी 3 कोर्सेज के नाम बताओ, जो कोर्सेज है हमारे लाइव
थर्ड मैं उससे पूछूंगा कि ओके ब्रदर आप क्यों करना चाह रहे हो, मैं नीड एनालिसिस करूंगा। फोर्थ में मैं उससे पैसे के बारे में पूछूंगा या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करूंगा। तो अपना 4-5 पॉइंट बना के रखो एंड उसको देख के फॉलो करो, ठीक है। इवन क्वेश्चंस लिख के रखो, उसको देख के आप उससे बात करो, ठीक है। 5-10 बार करोगे तो वो चीज आपके माइंड में इम्प्लांट हो जाएगी, एंड दैट विल बी ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर। तब आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना, आप वहां पे नर्वस होगे, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लीड स्टेटस देखते हैं पर ज्वाइनिंग, दैट्स द नॉर्मल थिंग। What type of video content should we make? स्टेटस तो मेरे भी 1500 लोग देखते हैं, उन्होंने भी नहीं करा अभी। या एब्सोल्युटली यार, बैक ऑफ द माइंड आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली हिट करना पड़ता है, राइट। ऐसे नहीं है कि आपने एक वीडियो दिखाया, लोगों ने देखा तुरंत ज्वाइन कर लिया, एंड दैट इज द फॉल्स एक्सपेक्टेशन यू आर कीपिंग विद योरसेल्फ, दैट्स व्हाई यू गेट डिसअपॉइंटेड। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक लीड आया, आपने सोचा यार ये बंदा आया, ये ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है, जैसे आएगा आप खुश हो जाओगे कि ये तो भाई मेरी फर्स्ट से निकली, फिर वो ज्वाइन नहीं करेगा, यू विल गेट डिसअपॉइंटेड। सो दैट्स द थिंग, फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, ठीक है, बहुत डेंजरस होती है। ओके, सर कौन सा पैकेज से कितना प्रॉफिट होता है? यार विराट देखो यार, ये सब बेसिक चीज है। अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कौन से प्रॉफिट में, कौन से पैकेज में कितनी प्रॉफिट होती है, तो यार यू आर नॉट सपोज टू गेट अ सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वॉच द प्रेजेंटेशन वीडियो, आप जाकर प्रेजेंटेशन वीडियो देखो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है। दिस आर बेसिक थिंग्स। ओके सर, व्हाट्सएप पे रोबोट मैसेज कैसे करेंगे? ये सारी चीजें मत करो यार, ये आपके जो आपका क्या बोलते हैं, बिजनेस बिजनेस व्हाट्सएप, ठीक है। अच्छा गाइस, वन मोर थिंग, मैं आपको जितने बिगनर्स लोग हैं, तो आई विल नॉट प्रेफर सजेस्ट एनीवन टू यूज बिजनेस व्हाट्सएप, ठीक है। बिजनेस व्हाट्सएप आप अवॉइड करो, अगर किसी का है भी तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। बिकॉज वो ब्लॉक हो जाती है, बिकॉज इनिशियली आपको बहुत लोग ब्लॉक करने वाले हैं, बहुत से लोग आपका रिपोर्ट बिजनेस अकाउंट में आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा रिपोर्ट आएगा, ज्यादा ब्लॉक्स आएंगे, तो आपका नंबर बैन हो जाएगा, उस पर व्हाट्सएप बनेगी नहीं, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में डू नॉट गो फॉर बिजनेस अकाउंट। लीड्स बोलती है इसमें काम कर चुका हूँ, बहुत ज्यादा खराब कंपनी है। ओके, लीड्स बोलती हैं, देखो यार, अब जो जिसको नहीं करना है वो बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत चीज बोलेंगे, ठीक है। अब भगवत गीता के बारे में भी लोग नेगेटिव बोलते हैं, सो दैट्स नॉट अ पॉइंट, ओके। बोलने वाले बोलेंगे। देखो यार, एक चीज समझो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ऑथोरिटी होती है, और सामने वाले बंदे को कंफर्टेबल करना है, और आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनना है। व्हाट इज स्ट्रीट स्मार्ट? जब भी कोई सामने से आपको क्वेश्चन कह रहा है ना, कुछ ऑब्जेक्शन फेंक रहा है, तो यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ कि आप उसको हैंडल कर सको। यहीं पे सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है कि आप हैंडल नहीं कर पाते हो। आपको क्या लगता है कि हमारी जो लीड्स क्लोज होती है, जिन्होंने 10-15 लाख जो भी कमाया है, वो आते हैं और क्लोज हो जाते हैं? नहीं, वो भी क्वेश्चंस फेंकते हैं, ऑब्जेक्शंस फेंकते हैं, बट ये है कि उस ऑब्जेक्शन को हम एनालिसिस करके तुरंत टू द पॉइंट में उनको आंसर देते हैं, जिससे वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप जाके मोहित की ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग है आपके पोर्टल में ही, लीड्स आर्क लॉन्च पैड के, आप अपने पोर्टल में जाओगे, लीड्स आर्क लॉन्च पैड, उसके अंदर ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय मोहित रावत। There are ample amount of objections. I think more than 25 objections है वहाँ पे, even closings भी है। Go and watch that video, make a note, ठीक है। Then only you can get the sales. सिर्फ वॉल पे जाने में सोचोगे यार मैं इम्प्लीमेंट करूँ हो जाएगा, या पहले सीख तो लो थोड़ा। सिर्फ बिना नॉलेज के आप लड़ाई पे जाओगे तो फिर मतलब ही नहीं है। ट्रेनिंग में ज्यादा पसीना बहाओ, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। या मोहित, आई थिंक हाउ एक का ना क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बार आ गया, मतलब 25-30 बार आ गया होगा, ओप्पो 25-30 A5 बार? का। यस यस, व्हाट्स द नेम? काफी ओप्पो A5 है, नाम नहीं लिखा इन्होंने। काफी टाइम लड़कियों को फैमिली अलाउ नहीं करती सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डालने को, तो वैसे वीडियो, ये केस आपके संग नहीं है, ठीक है। मैं आपको ना एटलीस्ट 2-3 नाम तो अभी मेरे नजर में आ ही रहे हैं जिनके संग ये इशू था, ओके, बट जिन्होंने ओवरकम करा। तो ये सिर्फ एक देखो, बिना वीडियोस के बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको कोई वो नहीं देना चाहता कि आप बिना वीडियोस के भी कर लोगे, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आप देखो, वीडियो बनाना कोई गलत नहीं है यार। ओके, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तो अपनी फैमिली को आप कन्विंस कर सकते हो कि यार वीडियो बनाना कोई गलत नहीं है, और आफ्टर वो आपकी फैमिली है, आपका भला चाहती है, तो अपनी फैमिली को कन्विंस करो, सिंपल, ठीक है। कुछ जो आसपास के लोग होते हैं ना, जो हमारे बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, तो उनको ब्लॉक कर दो, सिंपल, ठीक है। ये मैं आपको एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। बाकी यार वीडियो बनाओ, जो भी नाम है आपका, आपने नाम नहीं लिखा है, कुछ इस्लामिक में होता है, हाँ, मुझे मैं समझ गया, मैं समझता हूँ वो चीज कम्प्लीटली। बट बहुत सारी ऐसी इस्लामिक लड़कियां हैं जो करती है यार, ओके। और कुछ गलत काम जब तक आप नहीं कर रहे हो, कोई डरने की बात है नहीं, है सिंपल, ओके। Yeah, yeah. Guys, I'll tell you one thing. Like,
जो भी मोहित ने बताया, इस्लाम बहुत लोग होते हैं जो इस्लाम से बिलोंग करते हैं एंड दे यूज्ड टू वेयर हिजाब, जिसमें आपको हिजाब, फेस हाँ। ढकना होता है। एंड ये यार ऐसे भी बहुत सारे लड़कियां हैं जो अच्छे खासे मिलियंस, 10-15 लाख 20 लाख अर्न कर चुके हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग इज एन एक्सक्यूज। अगर आप ये कह रहे हो कि फैमिली मना कर रही है, कौन क्या सोचेगा, ब्लॉक मारो। जो ऑब्जेक्शन कर रहे हो उनको ब्लॉक मारो, अपने काम पे फोकस करो यार। दैट्स द ओनली वे टू गेट सक्सेस। आप कुछ भी करोगे, एवरीवन कैन नॉट बी हैप्पी, everyone cannot be happy. You can never make everyone happy. That's a simple thing. And जो हिजाब की बात हुई, इसकी बात हुई, भाई there are lot of girls doing the same. हमारे लीग में आप मुझे नाम नहीं याद आ रहा, फेसबुक ग्रुप में अक्सर वीडियोस आती हैं, मतलब शी इज सो एक्टिव, शी इज मेकिंग लॉट ऑफ बिल्कुल वीडियोस, बिल्कुल, मैंने भी देखा है, ठीक है। हाँ। लॉट ऑफ वीडियोस आप एक भी वीडियोस में उनका फेस रिवील नहीं है, सब में मास्क है एंड हिजाब है, ठीक है। सो दैट्स एन एक्सक्यूज। इफ वन कैन डू तो एवरीवन कैन डू, राइट। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटेंट तो बनाओ, आप हिजाब पहन के कंटेंट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। प्रेजेंटेशन वीडियो, आई थिंक क्वेश्चन इज द सेम, मोहित। ठीक गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑलमोस्ट 1.5 आवर सेशन चला, सो वी लर्न अ लॉट फ्रॉम मोहित। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली एंड आई होप कि आप जाके इसको इम्प्लीमेंट करोगे। अब भी जितना सीखो, गो इम्प्लीमेंट एंड नोट्स को फॉलो करो, सो दैट यू कैन गेट द रिजल्ट फॉर योरसेल्फ। एंड मोहित की जो ट्रेनिंग है, बताया मोहित ने, पोर्टल में बहुत सारे ट्रेनिंग्स ऑलरेडी आया सर के एंड ऑल। गो कंप्लीट ऑल दोस ट्रेनिंग, मेक नोट्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देखो, go on the call with your leads. Don't have any expectation कि वो close होंगे, because expectation is something ना, एक्सपेक्टेशन अपने प्रोसेस को रखो कि मैं इंप्रूव हो रहा हूँ, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन रखो, दैट इज अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। बट इफ यू आर कीपिंग एन एक्सपेक्टेशन कि बंदा क्लोज हो जाए, लीड आया एंड क्लोज हो जाए, एंड दैट वाज समथिंग सबने गलती की है, मैंने भी की है स्टार्टिंग में। एक बंदे ने मैसेज किया, हम सोचते हैं यार भाई क्लोज तो हो गया, इतना आसान है। मैं आपको अगर अपने एग्जांपल बताऊं, मैंने डीप जब ज्वाइन किया था, तो मैंने ज्वाइन इसलिए किया था कि मुझे एक बंदे ने कहा कि आई एम रेडी टू स्टार्ट, ठीक है। जब मैंने उसने कहा रेडी टू स्टार्ट, मैंने कहा चल, मैं 2 दिन बाद स्टार्ट करने वाला था, मैंने कहा चल आज ही आईडी लगाते हैं। मेरे स्पॉन्सर को पता भी नहीं था कि मैंने आईडी लगा ली रात को 12 बजे। और जब मैंने अपनी आईडी लगा के उसको लिंक भेजी, उसने कहा पेमेंट करना पड़ेगा। आई वाज लाइक आई वाज लाइक आई हैव नथिंग, मैंने अपने पैसे लगा दिए। बट मैंने बोला नहीं यार, अब इसको मैं क्या ही कर सकता हूँ, जो लगाए हैं तो पैसे निकालेंगे, मेहनत करेंगे। सो दैट एक टाइम ना आई छोटी सी चीज है ब्रदर जो मैं शेयर करूंगा। वाज श्योर मोहित। यस, लास्ट चीज मैं बोलूंगा आप लोगों को कि देखो, होता क्या है ना, देखो हमने अपने स्कूल में कॉलेज में भाई सालों दिए हैं कुछ हजार रुपए कमाने के लिए। ओके, हम यहाँ पे कुछ महीने तो दे ही सकते हैं ना, राइट। तो हम क्यों वो कम टाइम के अंदर ज्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट करने की दौड़ में लग जाते हैं कि यार कम टाइम के अंदर जल्दी रिजल्ट आ जाए, बिना सीखे जल्दी रिजल्ट आ जाए। वो नहीं होने वाला। सिंपल। आप किसी भी पर्सन का, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे कि वीडियो वगैरह कैसे अभी आप इतनी अच्छी बना, एडिटिंग वगैरह कैसे करते हो। भाई वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई है। ओके, पहले दिन किसी के पास अच्छा आईफोन, अच्छा लैपटॉप नहीं था। ओके, दैट इज द थिंग। सेकंड चीज जो मैं लास्ट बोलूंगा वो ये कि आप लोग ना इम्प्लीमेंट जरूर करना। देखो, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट कि आप, मैंने इस ट्रेनिंग के लिए अप्रोच करा था पहली बार विकास आपको, है ना, कि भाई मेरे को ये ट्रेनिंग करना है ना। मेरे को विकास ने ही अप्रोच करा था कि आप ये ट्रेनिंग करो, मैंने बोला कि भाई मुझे ट्रेनिंग करना है, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट यार आप सीखो, ठीक है। मैंने अपनी टीम के लिए किया था, तो मैं सोचा आप लोगों को भी एक करना चाहिए जरूर। ओके, बट अगर आप इम्प्लीमेंट अभी नहीं करते, कंप्लीटली आपकी मिस्टेक होगी। सिंपल, दैट इज द थिंग। या विकास, एनीथिंग आप जो परफेक्ट बोलना चाहते परफेक्ट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो यही मैं जो बता रहा था ना यार कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। आप अपने प्रोसेस को लेकर इंप्रूव करो कि मैं सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, जस्ट क्लोज हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, इसको लेके एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि इससे डिसअपॉइंटेड बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है या फिर जिससे आपको कि कुछ मिल जाए, वो आपके प्रोसेस में होना चाहिए। यू शुड have the expectation with your process, रिजल्ट से अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो फिर डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, मेहनत प्रोसेस आपके हाथ में है, जो आप मेहनत करके उस पर एनर्जी और आपका टाइम एवरीथिंग आप डाल सकते हो। बट रिजल्ट जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितनी मर्जी अच्छी कर लो, रिजल्ट जब आना है वो अपने हिसाब से आएगा। कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी एक साथ बहुत ज्यादा आ जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर हैंड। हमारे हाथ में हमारी मेहनत है, ठीक है, हमारा प्रोसेस है। सो जस्ट फोकस अपॉन द प्रोसेस एंड एवरीथिंग इज क्लियर। मोहित ने बहुत अच्छे से बताया, ट्रेनिंग वाज टू गुड, आई वाज देयर थ्रू आउट द सेशन। ओके, go implement everything and you will get the result for sure. Okay, so Mohit, thank you so much, आपने ट्रेनिंग करवाया, आपने टाइम निकाला ट्रेनिंग के लिए, and you approached me for the training. Guys, one more thing, like Mohit approached me कि Vikash bhai, I want to do a training for all the leads Dakian. So like people have good heart and they want to help you. Now you need to help yourself.
है ना, आपको हेल्प मिल चुकी है, चीजें मिल चुकी है, नाउ यू नीड टू हेल्प योरसेल्फ, सो गो मेक कंटेंट, implement all the things जो मोहित ने बताया and get result for yourself. So that's all from my side, and once again thank you everyone for coming, thank you everyone for joining, and Mohit, a special thanks to you for sharing all the wisdom and everything with all of us. Okay guys, bye bye, good night, we'll see you in the next week with one more achiever with one more amazing training. Bye bye, good night. Okay.